Okay, boys and girls, my name is Sushant और मैं हूँ जिंदा. For the people who do not know, I am Sushant and this is Harsh Mali. Harsh Mali happens to be a stand-up comedian and a full-time internet chad and a Sigma male. Okay, so this intro was recorded after the first podcast was recorded, and I am pretty sure there are a lot of suggestions and criticisms which the audiences or the listeners might feel that we shouldn't have committed, or they feel that should have been there, and we are open to the idea. If you want us to do something, or you want to add your own ideas into our podcast, we're open to that. And हमारा नाम ही अच्छा ऐसा क्या है, तो हमें खुद नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं और हम सीखेंगे और आएंगे बेटर होके. हम सीखेंगे और हम आएंगे बेटर होके. यस. सो हर्ष माली, ओवर टू यू. लेकिन देख रहे हैं अपन कितना कैंसिल कल्चर से डरता है कि अपन पहले ही इंट्रो के अंदर अपन अपोलोजाइज कर रहा है कि कुछ गलती हुई रहेगी तो माफ कर दे. Is how guys are in real life. We haven't seen each other's face. This is how we work. This is how we work. We haven't even met each other in real life, but here we are starting a podcast together. Can you beat that? Can you beat that? Can you beat that? This is peak being a guy. This is peak guy. This is peak. हम आज तक क्या राम राज्य में चल रहे हैं. राम राज्य में चल रहे हैं. कलयुग हिट ही नहीं हुआ अब तक. Yes. Yes. And Mali, I have said enough. स्टार्टिंग में कैसे मिलते पता है? Yes, I do. We were in the same group chat. Shout out to a lot of big PP chats. Shout out to big PP chats. I don't remember exactly who made that group chat, but anyone. चमोला ने बनाया था. Yes. और आज एडमिन तो आर्यन कपूर है, पर वो टाइम पे चमोला ने बनाया था. चमोला का भी अकाउंट. अरे कैडबरी बूबो EXE था यार, if I'm not mistaken. चमोला था भाई. Okay, works. Right. So we were in a random group chat which is during the lockdown. This is early 2020, not early 2020, but like April 2020. Yes, late 2020. सब लोग बोर हो रहे थे, हम भी बोर हो रहे थे. हम एक ही group chat में थे. Even though we didn't talk a lot during that time, did we? We didn't. We started talking. Y'all won't believe we started talking in this January. We didn't even exchange phone numbers for 2 years. We started talking for the first time in January. Mali और अप्रैल में सोच लिया कि पॉडकास्ट करना साथ में. बताओ. Yes. ये वाला एक ब्रो पॉडकास्ट करेगा. मैं बोला हाँ करेगा भाई, क्यों नहीं करेंगे. अपना टॉक वैसे जाता था ना, अपना 3 AM टॉक्स होते थे हमेशा कि भाई ऐसा हो गया. मैं इंटरनेट पे बता दूं, मैं बनिया हूं. हम लोग हर चीज से पैसा कमा लेते हैं. बोले तो तकलीफ. हाँ, हम हर चीज में पैसा कमा लेते हैं. अगर मेरे को बात करने के पैसे मिल रहे, क्यों नहीं. देखो, I'm not saying that this podcast is going to be a hit, but if it does, I said it first. Manifesting. Okay. Now, Mali, what would you like to add? भाई मैं जिंदगी में ज्यादा कुछ ऐड नहीं कर पा रहा, तो पॉडकास्ट में अब क्या ऐड करूंगा. बातों में बात निकलेगी, बात बनेगी तो बात करेंगे, और क्या. कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अपने को लगता है कि शायद अगर मैं वैसा होता तो क्या होता. तो अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे किसी जैसा बनना है तो सुशांत जैसा है, और सुशांत ऐसा सोचता है कि उसको अगर कुछ क्रिएटिव स्पेस में करना है तो मेरे जैसा होना चाहिए था. तो ऐसे करके हम दोनों एक दूसरे को बराबर ऐसा पीस जैसे फिट करते हैं. हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट. माइंडसेट एक आएगा, माइंडसेट एक ही शायद अपना. यस, वेज अलग है पर माइंडसेट एक ही अपना. यस, it's not about the path, it's about the destination. Okay. I am hoping that you guys are doing great. So today we are recording the first episode of Acha Aisa Kya podcast, and we've got Ganesha ne aka Shantanu Adhikari on board. Oh my God, we're so delighted to have you here. Thank you for having me here, भाई. पहला podcast. I feel privileged. और Mary Nishan. Thank you Harsh. Finally, जिन्होंने को नहीं पता, ये तीसरा टेक है
अब जाके थोड़ा नॉर्मल हुए हैं सब। Yes. Ah, बोल ऑकवर्ड। हाँ, स्टार्ट। मैं ये पूछ रहा था कि अब कितना साल हो गया तुझे मीम पे चला के वो वाला गाने शाने? भाई भाई पता है काफी नूब हूँ मैं, आई गेस 2 साल ही हुआ है, अभी 2 साल भी पूरा नहीं हुआ है। 4-5 दिन में 25 जून को 2 साल हो जाएगा पेज चलाते हुए, जो जो कि ऑफिशियली है। उससे पहले मेरा पेज था नहीं, लेकिन जो मेरा इंस्टाग्राम पेज था उस पर मैं बहुत शिट पोस्ट करता था। ऑफिशियली जो अलग से पेज बनाया मैंने म्यूजिक के लिए, ये वो फॉलोअर्स है? अभी द मोमेंट आई एम टॉकिंग टू यू आई हैव अराउंड 36,193-94 फॉलोअर्स। पूरा हाँ काउंट याद है भाई देख। भाई, yes. अभी देख रहा था क्योंकि गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं। 2 साल में अच्छा एंड सा है यार। एंड अच्छा खासा, इनफैक्ट ये it's a पेज lot. एग्जिस्ट, एंड ये पेज एग्जिस्ट ही करता है क्योंकि वन ऑफ द रीजन इज भानु सुशांत। क्योंकि हम लोग एक ग्रुप चैट में हुआ करते थे 2020 के अराउंड, जिसका नाम था बाय द वे श्रीकांत, तेरा पूरा नाम क्या है? असली नाम क्या है? भाई तू पढ़ लेना यार, ऐसे बेइज्जती मत करो तुम लोग यार मेरी. पता है हाँ, मैंने आज तक इसका पूरा नाम कभी प्रोनाउंस नहीं किया, मुझे लगता है यार क्या पता गलत बोल दूं, अरे है ना, इट्स ओके यार, इट्स ओके. सामने वाले को जिसने अच्छा ना लगे। जिसने तो आई सूर्यवंशम देखा कॉल है हिम उसको प्रोनाउंस भानु। करना आता होगा। तो मैं कह रहा था कि वी स्टार्टेड टॉकिंग इन 2020, वी वर इन द सेम ग्रुप चैट, जो कि जिसका एडमिन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्रीडम Freedom 251 मोमेंट। 251, yes. फ्रीडम 251 मोमेंट। तो वो ऐसी एक, मतलब वो कह सकते हैं इट वाज अ पायनियर आयरनी पेज, जो पहले इतने नहीं होते थे। तो हाँ. I, हाँ नहीं होते थे, 2020 में नहीं होते थे। तो उसने हमारे जीसी बनाया था और आई वाज इन इट थ्रू शुभम, एक फ्रेंड है मेरा। तो वी यूज्ड टू टॉक, रोज बात करते थे। तब इसने कहा था कि यार सबका कोई ना कोई पेज है, व्हाई डोंट यू स्टार्ट। तो देन आई स्टार्टेड माय ओन पेज। सो शाउट आउट टू माय फेलो मेंबर्स, ओजी। पारस, OG. ओजी मेंबर्स पारस, सुशांत, शुभम, फ्रीडम 251, आई डोंट नो हिज नेम, डेंकेश, डेंकेश दी ओजी, Yes. एंड आदित्य, त्रिदेव, श्रेयांश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी का नाम भूल जाऊं तो सॉरी। Yes, हमें माफ कर देना, but you guys are the दिस इज OG हाउ jewelry tops. दिस इज हाउ दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। भाई और वही तो अभी मैं भी मैं बोलता, बंदा कितना हम्बल है देखना, एक बड़ा स्टेज मिला, सबको क्रेडिट दे दिया। कि मैं मेरे पापा को कुछ कुछ थैंक्स बोलना स्टेज चाहता हूँ, पता है, मम्मी को थैंक्स बोलना चाहता आज हूँ। आज की डेट में हर्ष, तुम पत्थर मारो भीड़ को ना, एक एक कंटेंट क्रिएटर को पत्थर लगेगा। इतने ज्यादा कंटेंट क्रिएटर हो गए ना मार्केट में, कि एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि सैचुरेशन बहुत हो गया है अब। हर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, कोई कंज्यूम करने वाला नहीं रहा ना, सभी Yes. क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, Look at हाँ us. अब हर Look कोई at रील us. बनाता We are the है। biggest examples. यहाँ पे आयरनी कर रहे हैं हम लोग. पर मेन क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या मीमर्स पैसे कमा पा रहे हैं? Yes, the question of the hour. The हाँ, people, क्या people मीमर्स of को the country बंदियां want मिल to रही हाँ know. है? The nation wants हाँ, to know. कमा पाते हैं, कमा पाते हैं। क्या मुझे मीमर्स दिन को के बंदियां इतने मिल सारे, रही है? हाँ, बंदियों का क्वेश्चन नहीं है, तू ये है किसको कि पूछ रहा है यार? हाँ ही पैसा कमा शांतनु सकते हैं। अधिकारी. Look at his face. Look at his face. वो उसको बंदे मिलेंगे. ओके, उसको बंदे मिलेंगे. बंदियां बहुत दूर की बात है भाई. बंदियां ऐसे ऐसे गिरती हैं. Look at me. ऐसे. आई गेट आई गेट अराउंड आई गेट अराउंड 5 to 7 मैसेज रिक्वेस्ट डेली बेसिस पे, कि वो पूछते हैं कि व्हाट आर योर रेट्स, है ना, गलत वे में नहीं, कोलैब करोगे। एंड इवन इवन ये जो 3-4 मिलियन के पेजेस होते हैं ना, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स। अब इनके पास क्या होता है ना, इनको जैसे लेट्स से कोई नई मूवी आ रही है या कोई एल्बम आ रही है, तो जो प्रोडक्शन कंपनी होती है, दे कॉन्टैक्ट दीज बिग मीम पेजेस, दे इन टर्न कॉन्टैक्ट अस स्मॉल क्रिएटर्स टू कोलैब विद देम। वी मतलब दे हायर अस इन अ वे टू मेक कंटेंट फॉर देम, जो कि वो पोस्ट करेंगे, ताकि उस मूवी का या उस सीरीज का पब्लिसिटी हो सके। आप देखते हो ना आए दिन, विद एवरी स्क्रॉल यू सी अ न्यू मीम, जिसपे एक नई सीरीज का हमारे कोई सबसे रेफरेंस फालतू होता है। सीरीज और मीम, मूवीज वाले यही हाँ, करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मीम टेम्पलेट होता है और नीचे से हैशटैग लगा होता है। वो क्यों कर रहे हो मीम, और उनको भी पता है कि ये पैसे के लिए पनीर मोमेंट है, Yes. कि है ना, आज आज इससे आज पैसा एडमिन मिले। पनीर खाएगा. हाँ, आज एडमिन पनीर खाएगा। बट पता है, आई डोंट पर्सनली बिलीव इन डूइंग इट, मैंने कभी नहीं किया। इनफैक्ट हाँ, कभी पहले किया होगा आउट ऑफ फ्रेंडशिप, किसी दोस्त का शाउट आउट प्रमोट कर दिया होगा, बट मैंने ऐसे किसी बड़े मूवी के पॉडकास्ट लिए या में ऐसे ही किसी कर के रहा लिए है। बैनर के लिए कभी नहीं किया। But हाँ, if I'm being very क्योंकि यार honest, if I'm being very honest, मैंने, Has हाँ to जी, be Shan has to be one of the best music pages out there. He's actually नो नो one of नो the नो 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 नो, OG नथिंग लाइक दैट। music pages. आई बहुत बहुत इल्जाम लगे हैं मुझ पे, मैं अपने सारे इल्जाम साफ करना चाहता हूँ। पहली बात, ठीक है, मैं बताता हूँ, इल्जाम लगाता हूँ। लोग कहते हैं कि यार
लो एफर्ट है, हाँ, but so is you posting a pic of a random monkey and writing his name Mangesh और कुछ भी, that is also low effort, बादल है ना, है ना। True. बादल, घोड़े के नीचे, घोड़े की बादल फोटो के नीचे बादल लिख देना, वो भी तो लो Exactly. एफर्ट है। बादल हाँ, Exactly. मैं तो बोल नहीं रहा कि बहुत हाई एफर्ट काम कर रहा हूँ मैं, पहला। दूसरा कि मैंने हर जगह बोला है कि समटाइम्स पीपल से ना कि यार ये तो सुरूर गैज़म जैसा लग रहा है। शाउट आउट टू सुरूर गैज़म, ही इज द ओजी, आई एम नॉट द ओजी। सुरूर हाँ गैज़म, हाँ, आदर्श वत्स इज द ओजी। तो फर्स्ट वो उसने ही बहुत चालू हम्बल। किया था ना कि हाँ म्यूजिक और हाँ मीम। हाँ हाँ हाँ, इंडिया में अगर किसी को क्रेडिट जाता है कि म्यूजिक प्लस मीम्स को पॉपुलराइज करना और एक एक वो एनवायरनमेंट बनाना ना 2000s के म्यूजिक का, हाँ, थ्रू हिमेश रेशमिया's म्यूजिक, तो दैट बस उसका क्रेडिट गोस। स्टार्ट भी ऐसे हुआ था ना कि ऐसा लगता था कि वो रोस्ट कर रहा है, फिर बाद में वो चेंज हाँ होकर फैन हाँ पेज बन गया आई उसका। हाँ, टेल यू, मैं बताता हूँ, ये बात 2019 की है। मेरा एक फ्रेंड है क्षितिज, उसने मुझे पेज भेजा, उसने कहा भाई लुक एट दिस, स्टॉक दिस। मैंने देखा और मैं 2 मिनट तक सर्च करा गया, मैंने कहा यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये हिमेश का फैन है या ये हिमेश को रोस्ट कर रहा है। हाँ, दैट हाँ वाज द ब्यूटी ऑफ हिज पेज, इज आई मस्ट से इज। तो हाँ वो हाँ, आई लुक अप टू हिम, है ना। हम्म। नाउ ही फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम, सो आई थिंक दिस इज सक्सेस। मतलब ये होती है सक्सेस कि जिसको तुम लुकअप नहीं यार, करते हो उसने तुम्हें फॉलो बैक कर दिया भाई। दिस इज पनीर मोमेंट, मतलब दिस इज द सक्सेस, पनीर अभी मोमेंट। 2 घंटे पहले तो डीएम किया था उसको। I believe success is subjective, है ना। यस एग्जैक्टली, What may be success in your eyes may not be success in some other person's eyes. कि एग्जैक्टली। अगर मानता हूँ कि अगर एक टाइम पे 2 साल पहले आई वॉज हिज मियर फॉलोअर, एक बस फॉलोअर था जो वो जानता भी है कि मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ, एंड नाउ ही इज फॉलोइंग मी बैक बिकॉज ही सेड आई हैव बीन सपोर्टिव टू हिम, टुवर्ड्स हिम, आई हैव सपोर्टेड हिज कंटेंट, है ना। तो दैट मीन्स समथिंग, एंड आई सी दिस एज सक्सेस, एंड as एग्जैक्टली, small as it may be, but it is success in my eyes. that's That the is why I entire say gist of the success thing. is That's subjective. the entire हाँ, gist of the thing. Like everything is subjective, like you said. हम्म, Memes are low effort or high effort. It's subjective. I mean, हाँ, for me, something might be high देखो, effort, something might be low effort, but it's अ, completely my opinion. पर अब देख देख के ना मीम्स और निकोलो प्लेलिस्ट निकोलो में एक लव निकोलो लैंग्वेज बन चुकी मैकियावेली निकोलो मैकियावेली यूज्ड टू से द एंड्स शुड जस्टिफाई द मीन्स। अगर अगर एंड्स जस्टिफाई हो रहा है, मतलब अगर आपको हंसी आ रही है ना, तो बस हंसी आ रही है, दैट इज द अल्टीमेट एंड। अब Exactly. मीन्स मीन्स कैसा है, हंस क्यों रहे हो, क्या रीजन है, वो बात अलग है। एंड्स शुड जस्टिफाई द मीन्स। भले ही हाँ हाँ रिएक्ट करके नाक से केवल हवा निकाले, लेकिन हाँ हाँ। हाँ 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 मतलब हाँ मैं हाँ, बोल रहा ना बहुत कि अच्छा, अब बहुत कॉन्वर्सेशन अच्छा कैसा है। आरबीसीजे का, बहुत अच्छा आरबीसीजे का मीम भेजा है तुमने रिया। यस हाँ मैं एग्जैक्टली। वही बोल रहा था कि अब मीम्स और म्यूजिक ना अब ऐसा ये हो चुका है, लव हम्म, लैंग्वेज हो चुका है कि अगर बंदी से कुछ बात करने को नहीं है तो मीम भेज अरे दो, अगर तो मीम्स, कॉन्वर्सेशन डेड नहीं होगा कम से कम। अरे नहीं, मीम्स आर द फ्यूचर, पता है। ये अभी बच्चन पांडे मूवी आई थी, बच्चन पांडे हम्म, मूवी में वो जो सीन था वेयर ही वाज टचिंग फीट ऑफ हिज मास्टर, वो जहाँ पे हम्म, वो एब्डोमेन एरिया पे टच कर रहा था, वो मीम से तो इंस्पायर्ड था। हाँ हाँ हाँ। अरे वो एग्जैक्टली। भूल भुलैया 2 आया ना, दे उसके अंदर नहीं हाँ, क्या दे पहाड़ी हो आर रही है। दे आर लिटरली टेकिंग मीम रेफरेंसेस इन रेफरेंसेस, मूवीज, यस। ताकि और उसको वो ट्रेलर में डाल रहे हैं ताकि वो मूवी चले, थोड़ा सी हाँ, रिलेटेबिलिटी पब्लिसिटी। फैक्टर आए, लोगों को हाँ, लगे अरे ये तो मैं और रोज देख रहा हूँ। इनफैक्ट पता है मीम्स अब ना फोन से निकल के आसपास आने लग गए हैं, लोग प्रिंट करवाते हैं टी शर्ट्स में मीम, क्यों, उससे लोग हाँ, खरीदते हैं। अगर आपको मर्चेंडाइज। कोई, हाँ, तुमको कोई टी शर्ट पे कोई मीम रेफरेंस लिखा हुआ मिलेगा तो तुम उसको खरीदना नहीं चाहोगे। अच्छा लगता है ना यस कि यार हम पब्लिक में पहन के निकलेंगे और यस। लोग पहचानेंगे, अच्छा ये इंसान वो मीम देखता है, अच्छा ये मतलब इसको मीम्स पसंद है। अच्छा ओके, ऐसा क्या? ये हैशटैग टैंकेड है, शाउट अच्छा यार आउट ये टू टैंक, अच्छा ऐसा क्या अच्छा, पॉडकास्ट। हाँ, मतलब हाँ ये टैंकेड है। तो वो एक अलग दिखने के लिए ना, पब्लिसिटी के लिए भी मीम्स बहुत अच्छी चीज है। तो या दैट्स मीम्स ट्रू, का बहुत अच्छा फ्यूचर है। हाँ, दैट्स ट्रू आई वुड बट कंप्लीटली अगर ऐसे एग्री विद ऐसे देखने जाए शान, तो तेरे को सबसे पहले कौन सा मीम याद है जो इंडिया में बहुत वायरल हुआ था? यार मेरी हिसाब से तो डिंटैक पूछ मैं रहा था। देखो, देखो मैं काम की बात बोलता हूँ, मैं हूँ 20 साल का, 21 साल का होने वाला हूँ जुलाई में। हम्म, आई जॉइन इंस्टाग्राम इन 2015, तो उस टाइम पे तो ज्यादा मीम्स थे नहीं। ट्रेंड्स पहले कह सकता हूँ, ट्रेंड्स जिनसे शुरुआत देखी थी मैंने, एक डू यू रिमेम्बर एक ऐप आती थी प्रिज्म ऐप। यस 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 हाँ यस आई डू। हाँ वो हाँ। अरे थोड़ा बी सा सिक्सटीन। कार्ट, हाँ, बी 16 तो लड़कियों के लिए था, लड़के करते थे। फेसबुक अभी भी नोटिफिकेशन देता है, मेमोरीज फ्रॉम पास्ट। आह हाँ, माय गॉड, द प्रिज्म, क्रिंज मेमोरीज। हाँ, प्रिज्म ऐप आती थी उसमें, मतलब वो कार्टूनिश जैसा तुमको कर देता था तुम्हारा यस एडिट।
यस, तो थोड़ा वो श्रिल हो काफी जा रहा है, थोड़े पिरामिड्स बन जा रहे हैं, थोड़ा सा हाँ डिस्टॉर्शन व्यू हो रहा है। जी 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 अपन सब बिल्कुल 10th में बिल्कुल। थे ना तब। मैं 2015 में, भाई मैं 9th में था, यस, 9th आई हाँ आई आई 9th वाज 8th इन में था। 10th। ईशान और मैं मैं 10th बच्चा में। हूँ भाई, मैं बच्चा अरे हूँ। वी आर सेम मैं शान, आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर इन सेकंड ईयर, हर्ष माली एंड आई आर सेम थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, अच्छा, थर्ड ईयर। आई अरे तो जस्ट सब गॉट इनटू सेम ही माय तो है थर्ड ईयर। यार, हम सारे आई सेम ही सेम जस्ट हैं। ही गॉट है। आई जस्ट गॉट इनटू माय थर्ड ईयर। अच्छा, हाँ मैं पास हो गया। थर्ड ईयर। हाँ मैं पास हो मैं गया, एलएलबी फोर्थ ईयर ग्रेजुएट। अभी हाँ अभी पास तो हो ही जाएंगे यार। तो हाँ, देन आई केम अक्रॉस दैट वेरी ब्यूटीफुल ब्लू आइड पाकिस्तानी गाय, यू रिमेम्बर? यस, वो चाय चाय वाला, वाला, द ही चाय वाज, वाला, द हाँ वो चाय वाला। चाय, हाँ वो हाँ ऐसे हाँ चाय। हाँ हाँ। हाँ और किसी फोटोग्राफर ने उसकी पिक क्लिक करी थी एंड इट वेंट वायरल उस टाइम पे। यस, तो उसके बाद से मुझे थोड़ा सा लगा कि यार इंस्टाग्राम इज अ फनी प्लेस, क्या है, चलो देखते हैं। हाँ फिर आता है वो अ, पाकिस्तानी आंटी, गवर्नमेंट आंटी, पाकिस्तान गवर्नमेंट आंटी। गवर्नमेंट वाली आंटी, ये सारे वो मिलके इंडियन ही हमको है ना शायद। नहीं नहीं, शी नहीं इज इंडियन पाकिस्तानी। नहीं, ऐसा ना नहीं है। पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी था। इसकी अच्छा धोने ऐसा के क्या। लिए, वहां इसकी से। बीप धोने के लिए मेरे अच्छा पास पानी नहीं है। हाँ अच्छा हाँ वो हाँ। उस टाइम तक ना, उस टाइम तक जो चल रहा था वो बहुत इनफॉर्मल चल रहा था, किसी को पता नहीं था, लोगों के लिए ये सब जोक्स थे या वायरल वीडियोस थी। उसको हम्म, वो मीम का शक्ल उसने बाद में लिया थोड़ा, जब लोगों को पता चला कि ऐसा भी कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है। Yeah, there's a इनिशियली यूज्ड टू कॉल terminology. इट, There's an entire हाँ genre of things which can यस be classified into this particular. How am I supposed to यस say this? हाँ I don't have the terminology to describe it, but like meme can be classified into something which is tangible. हाँ विच इज रिलेटेबल और वेरी Yes. रिलेटेबल, मतलब Yes. हाँ बेसिकली टेक्स्ट ओवर सम रिलेटेबल पिक्चर, अ Yes. फनी पिक्चर। Yes. तो उसको इंडिया में ये 2016 में ही आया था, पता है? लोग शॉक होंगे आजकल के ये जान के कि पहले तो था ही नहीं ये कॉन्सेप्ट, इंडिया में कोई बोलता ही नहीं था मीम मीम फिर मीम। sarcasm था भाई, पहले तो वो वाला sarcasm. हाँ पहले वो वाला चलता सार्केज्म था, था। टैग योर फ्रेंड जो हाँ मोटा है। Chandler, टैग योर फ्रेंड, Chandler. जिसका Chandler. Chandler हाँ being हाँ mean. और हाँ सैरकेज़म, चैंडलर, हाँ सबसे पहले वायरल पेज था फेसबुक का। I know why हाँ Shan is laughing right now. I know the reason हाँ behind this. बहुत पुरानी यादें हैं, क्रिंज मेमोरीज हैं। Let भाई मुझे let ना them rest in peace. ट्विटर से वो नाम हटाना है, मेरे को अपने ट्विटर से वो नाम हटाना है, वो नहीं हट रहा है। मैं हर जगह से उसको मिटा चुका हूँ, वो बस ट्विटर पे रह गया है और मुझे ट्विटर से भी उसको हटाना है। For the प्लीज people डोंट who से do इट। not know why Shan and I are laughing. Okay, I'll tell you. My username used to be I won't say it. Please, Manu. Okay. Okay. I'll try not to laugh while I say this out loud, but Shantanu My Adhikari was username, earlier known as Hardy a friends as I Chandler. was. I was a Friends fan. I used to watch No, Friends no, no. It's a great show. I'm not saying out that of it's bored. not. I still find it funny if I'm being honest. Even though I say a lot of bad shit about mainstream shows, but जब मैं बोर होता हूँ and I want to feel good, I watch Friends. It's like my हाँ देखो, you can't भाई classify सीरीज Friends अच्छी है, as, उसके फैन बेस टॉक्सिक है। yes, हाँ वो तो yes, चीज फैन होती है। देखो, yes, yes, yes. Friends is not funny as per today's standards, हाँ, but it is very feel good, है ना? बहुत हाँ. It's अच्छी very वाइब feel है good. उसमें। It's very feel good. It's like एक your guilty यूफोरिया pleasure. आता है, हाँ एक यूफोरिया आता है उसको देख के। हाँ. कभी भी मतलब तुम कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, तुम लैपटॉप में उसका कोई भी एपिसोड चला लो पीछे से और तुम यू कैन कंटिन्यू विद योर वर्क। दिस इज हाउ गुड दैट शो इज, Yes. है ना, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग यू फील गुड। Yes. Exactly. तो Exactly. वो सब था। हाँ तो वी वर टॉकिंग अबाउट मीम कल्चर। तो उस टाइम पे जिस दोस्त का नाम एस से शुरू होता है, ही विल हैव टू बाय यू अ पिज्जा, स्टफ लाइक दैट। हाँ उसकी हाँ शादी इससे होगी, उसकी, एक लड़की हाँ का फोटो होता था। अरे स्टोरी इतना पे मेरे इतना को ये अल्फाबेट इतना रिप्लाई करो, आई विल गिव कैजुअली, यू अ डे. इतने इतने हाँ कैजुअली बॉडी शेम करते थे इंडियंस, इतने कैजुअली, मतलब दे यूज्ड टू पुट सम रैंडम अफ्रीकन वुमेन फोटो एंड दे यूज्ड टू राइट हाँ हाँ शादी करूंगी तो सिर्फ हर्ष से, ठीक है, हाँ. टैग हर्ष, शादी करूंगी इतने तो टैग हर आते थे ना फिर। शादी करूंगी तो सिर्फ हर्ष से। अब सोचो आज के जमाने में तुम कर सकते हो ऐसे? मतलब हाँ व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो, दैट गर्ल इज नॉट ब्यूटीफुल? वही तो बोलने का मतलब है तो तुम्हारा. हाँ, तो फिर ये सब था। फिर 2016 के अराउंड आई गेस मे में बोलने लगे थे सब। पता नहीं कहाँ से आया ये शब्द, किसने कान में भरा इनके मंत्र, ये में होता है ये। तो फिर चलो भाई मुझे चल भी पता है दिया। कहाँ से आया था। कहाँ बताओ से आया तेरे था? को, मतलब अभी इंडिया में तो अभी आया है, पर फॉरेन में क्या हुआ था, फॉरेन में एक बंदा था, सबको मीम टेम्पलेट मालूम है, वो है ना, वो एक बंदा है, बुड्ढा सा अंकल है, उसका ना, उसका हम्म, नाम
नाम नहीं मालूम, तो उसके मीम टेम्पलेट का नाम है पेन इन द स्माइल। हाँ, उसका क्या था, वो बुढ़ा आदमी था, वो रिटायर हो चुका था सब ट्रू चीज, ट्रू वो ट्रू ठीक है। जो वो जो ऐसे हाँ, बैठा है ना वो ऐसे हंस रहा है जो ऑकवर्डली हंस रहा है, हाँ उसके आंखों में पेन दिख रहा है। हाँ, पेन हाँ हाँ तो हाँ उसका ऐसा था कि पेन वो बंदा रिटायर हो चुका था। हाँ, और उसको एक फोटोग्राफर एक दिन दिखता है, उसको बोलता है कि चल मुझे तेरी स्माइल अच्छी लगी, फोटो खींचते हैं। ठीक है, तो उसका खींचा और सब जगह वो वायरल हो गया, लोग उसके बाद ना कॉम्पिटिशन चालू हो गए। एक जगह होता था, वहां पे सब लोग आते थे और कॉम्पिटिशन इसके फोटो रखते थे और बोलते थे जो अच्छा मीम बनाएगा वो प्राइस उठा के जाएगा। प्राइस का एंट्री होता था, वैसा सब। फिर उसके पता है बाद से वो मीम नाम आया और फिर अपने आप पता आया। है even अगर मीम्स की हिस्ट्री में जाए तो 1921 में भी एक कहते हैं द फर्स्ट मीम दैट ओरिजिनेटेड, एक मैगजीन थी या फिर मैगजीन तो क्या ही होती होगी उस टाइम पे, एक न्यूज़पेपर था, दे प्रिंटेड अ फोटो एक आदमी का, मतलब I'll send it to you, you can edit it, यहाँ पे कहीं पे लगा देना एडिट हम्म करके, ठीक हम्म है। तो वो था कि हाउ यू थिंक यू लुक वर्सेस हाउ यू एक्चुअली लुक, उस सॉर्ट ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ मीम। एग्जैक्टली उस टाइम पे वो एक जोक था, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो या इट वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट मीम व्हिच वाज प्रिंटेड इन 1921 हिस्ट्री लेसन और 101 फॉर 1920। पीपल ऑफ द इंटरनेट। शांतनु अधिकारी आपके हिस्ट्री टीचर आपको बता रहे हैं कि व्हेन वाज द And फर्स्ट मीम वाज even पब्लिश्ड। you know what, even the longest running meme, I believe the longest running meme which I believe is that Rick Roll guy, never gonna give you up, हाँ, that guy। हाँ ये बार हो चुका है उसका। अरे वो कब से है यार, इट हैज बीन सिंस फॉरएवर। 2004 में 5 में लोग रिक्रोल करते थे और आज तक करते हैं। कैसे करते थे, उस टाइम पे HTML वाली वेबसाइट्स होती थी ना, हाँ तो HTML वाली वेबसाइट्स पे दे यूज्ड टू टाइप लाइक कैटफिश हम्म, करते थे लोगों को कि इसमें इसकी हाँ। फोटोज मिलेंगी, क्लिक दिस लिंक, इसमें ये मिलेगा, ओपन दिस लिंक। तो वो लिंक को खोलते थे तो वो यूट्यूब वाली वीडियो पे पहुंचता था और वहां पे दैट गाय यूज्ड टू डांस भाई नेवर मैंने गोना एक गिव यू जगह अप। देखा था, एक बंदे ने ऐसा स्कैन कोड बनाया हाथ के ऊपर, उसको स्कैन करेंगे ना, हाँ, यस तो यस रिक्रोल यस। होता होगा। Now that हाँ everyone's telling their story of how they got to know about meme, मैं अपना भी बताऊंगा। So हाँ I mean मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। No matter how my accent might sound, बट मैं केंद्रीय योर विद्यालय से पढ़ा हूँ, ठीक वोकैबुलरी इज ग्रेट, है। योर मैं वोकैबुलरी केंद्रीय इज विद्यालय भाई, ग्रेट। तेरा जीआरई क्लियर है भाई, तेरा जीआरई क्लियर है, आगे बोल। का। You're going Okay, to London, that is something हाँ colossal, big। okay. So I was saying that this is early 2015 if I'm not wrong. मेरा नया नया फोन आया था। I used to use Motorola at that point of time. Right? मैं I flex used to नहीं कर use रहा एक मिनट हूँ। I used to, मैं बहुत मतलब गरीब सा था। I used to use लावा का फोन। हाँ, Okay. मेरा carry सैमसंग था on। भाई। तो मेरे पास मोटरोला फोन नया नया आया था एंड आई मेड एन इंस्टाग्राम अकाउंट सिंस माय एल्डर सिस्टर यूज्ड टू यूज इट एंड आफ्टर दैट मैं जब इंस्टाग्राम पे आया मैंने देखा यार ये क्या मस्त चल रहा है बढ़िया। आरवीसीजे उस टाइम बहुत सीआईडी वर्सेस आरवीसीजे एंड ऑल ऑफ दीस पीपल यू हाँ, नो दीस रजनीकांत गाइस वर रजनीकांत वर्सेस रजनीकांत। एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता होगा RVCJ का फुल फॉर्म है कि रजनीकांत वर्सेस CID वर्सेस सीआईडी जोक्स। सीआईडी। जोक्स यस 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 हाँ यस भाई एक दिन मैं फ्री था, आरवीसीजे मतलब एक दिन मैं बहुत फ्री था, मैं जाके पूरा उनका फर्स्ट पोस्ट देखा और लिटरली वो लोग वैसे करते थे, रजनीकांत और सीआईडी के मीम डाला करते थे, वो स्टार्टिंग से। एंड उस समय कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वाज द जोक। हाँ हाँ Everyone हाँ, wanted to know यस what thing was going एंड on. पता है ये मीम रजनीकांत कहाँ से आया पता है इसमें, क्योंकि अर्लियर व्हाट्सएप तो था नहीं, तो SMS के थ्रू ना जो भी जोक्स बनते थे वो रजनीकांत पे बनते थे, सॉर्ट Yes, ऑफ पोर्ट्रेइंग हिम एज लार्जर देन लाइफ। larger रजनीकांत than ने life, लाइट बंद exactly. रजनीकांत ने लाइट बंद करी, वो बिस्तर में सोया, उसके बाद लाइट बंद हुई, अरे सॉर्ट ऑफ दैट। ऐसा एग्जांपल मैं भी देता हाँ हूँ एक कि मैंने फोन लगाया हाँ और सामने वाले ने फोन उठा लिया और वो सामने वाला बोलता है हेलो रजनीकांत, तो रजनीकांत बोलता है अच्छा हाँ आप तुम कैसे समझ गए, बोले फोन तो स्विच ऑफ था। अच्छा। हाँ, यही रजनीकांत को लार्जर देन लाइफ रजनीकांत का ऐसा था, इमेज। एक था कि उसका डुअल सिम है और अपने सिम से दूसरे सिम को कॉल कर सकता है, वो रजनीकांत हाँ, वो ऐसा। था कि रजनीकांत का एक बार चलते सड़क चलते पर्स गिर गया था, एक आदमी ने पर्स उठाया, आज वो मुकेश अंबानी है। ये इस हाँ टाइप के जोक्स चलते थे। एग्जैक्टली। तो रजनी तो सर वहां से, हाँ पाए लागू। हम्म। हाँ, और सो भाई भानु यू वर सबसे सेइंग सबसे समथिंग। पुराने जो कैसे चलते थे, दूर से देखा तो ये था, पास जाके देखा तो हाँ वैसे। हाँ, भानु यू वर सेइंग समथिंग, Yes, RVCJ। yes, yes, yes. So the RVCJ was going on. तो उस टाइम ना एमी थी, अब मेरे को नहीं पता what was the pronunciation. तो भैया हम्म हम कैसे सरकारी स्कूल के नए नवेले पढ़े हुए बच्चे, हमको अंग्रेजी बोलते आती नहीं, हम तो में क्या है भाई। और उस समय ना कुछ समय बाद सीक्रेट सुपरस्टार मूवी आई थी, इफ यू रिमेम्बर एग्जैक्टली, नॉट सीक्रेट सुपरस्टार हाँ बट लाइक दंगल हाँ दंगल हाँ, दंगल वाज ट्रेंडिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दंगल, हाँ हाँ, यस यस दंगल यस। वाज पहले आई एंड थी मूवी। आमिर खान एंड उसकी पूरी टीम, सॉरी
Amir Khan sir, and the entire team was roaming around the country doing promotions and all of that. तो उनमें जो चाइल्ड एक्ट्रेस थी, I don't remember her name, अच्छा ही नाम था यार, जो दोनों सिस्टर का फातिमा चाइल्डहुड सना वाला रोल शेख, प्ले करा था ना, फातिमा जिन्होंने, जो सना बड़ी शेख, वाली थी, क्या नाम था उसका, आई डोंट नो। फातिमा सना शेख, हाँ हाँ हाँ, नहीं फातिमा सना शेख नहीं, शी वाज दी लाइक, उन्होंने क्या कहते हैं, बड़ी वाली ठीक है, सिस्टर का रोल प्ले किया था, ओके, मैं चाइल्डहुड की बात कर रहा हूँ, व्हाटएवर। तो हाँ जिसने अभी लेट एक्टिंग छोड़ दी, उसका कुछ हाँ हाँ सीन था। हाँ, एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली दैट नॉट गर्ल। रिलेवेंट, नॉट रिलेवेंट, यस, नॉट तो रिलेवेंट। तो दे वर गिविंग सम सॉर्ट ऑफ एन इंटरव्यू, और वहां पे उस बंदी ने मीम वर्ड यूज किया। लाइक मीम क्या होता है, वहां उस बंदी ने मीम वर्ड यूज किया कि हम सारे एक दूसरे को मीम शेयर करते हैं। लाइक व्हाट द फक इज मीम, कि हमको तो नहीं समझ भैया, हम गांव के लोग, हम सरकारी स्कूल के, हमको कुछ नहीं मालूम, ठीक है। तो आई वाज लाइक व्हाट इज दिस मीम, तो उसने एक्सप्लेन करा व्हाट द टर्मिनोलॉजी एक्चुअली मींस। देन आई वाज ओह माय गॉड, इसको तो मैं जानता हूं, ये तो मेरे को पता है, व्हाट इज दिस। यही तो मैं गवार इसको हूं, मैं गलत बोल रहा था तब से। ये इसको तो मैं गलत बोल रहा था। अब कैसा होता है कि तुम ना किसी भी सेलिब्रिटी को अपने से ज्यादा ऊपर पेडिस्टलाइज करते हो हमेशा, बिकॉज यू थिंक दे नो बेटर। It's not necessarily important that they might know better, but it's just the human behavior that you see someone on a screen and they say something and you think it's right because it's coming from them. भाई वो कभी कभी गलत भी बोलते हैं, मुझे ऐसा हाँ, लगता है कि बड़ों की दुनिया में ऐसा होता है। हाँ, exactly, हाँ। exactly. तुम अपने अपने तुम किसी फेवरेट एक्टर का एक इंटरव्यू देख के उससे ज्यादा सीख सकते हो जितना तुम एक लेक्चर पे अपने टीचर से सीख सकते हो। Exactly, अगर तुम exactly. मतलब if you really look up to someone, you tend to catch their vocabulary, you Yes. tend to grasp their knowledge, तो Yes. उनसे तुम ज्यादा सीख सकते हो, है ना? Exactly. तो इसलिए कहते हैं कि you should always watch interviews. That's very भाई true. वो हाँ। शाहरुख का है ना, अब मैं XYZ नहीं बोलता, XYZ बोलता हूँ, क्योंकि शाहरुख हाँ। जी बोलता है वैसा। Exactly, मुझे पता है, अभी झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे 2 साल पहले तक लगता था Z होता है, ABCD से Z तक होता है। हाँ हाँ फिर मैं सोचता था कि अब मुझे दिख भी रहा है कि यार इसको ZTV बोलते हैं, ये कभी सोचा भी नहीं मैंने कि इसको ZTV क्यों नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं सोचता ही नहीं था उतना कभी। यही, अब जाके अरे पता चला कि इसको ZTV क्यों बोलते हैं। अरे महाराष्ट्र में there's this stigma, not stigma but it's like हमारे लोगों की ना जो जी मतलब बोली होती है, it's very harsh, not harsh I'd say, but it's like the way people pronounce things here. अब ये साउथ इंडियंस के साथ में भी है, it's like hello sir vanakkam, what do you want to eat here, like we say things in a funny way, and the same way थोड़ा same swing thing goes for swing Marathis. कराते हैं, थोड़ा आउट हाँ, स्विंग, yes, yes, yes. स्विंग कराते हैं। The same thing goes for Marathi people. वो हम लोग ना ए नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ये हम लोग ये बोलते हैं। तो इट्स लाइक हमारे में ना, जब तक हमको क्या कहते हैं, हम बचपन से वही चीज सीख रहे हैं। अब हमारा टीचर हमको ये बोल रहा है तो हमारे लिए भैया यही हुआ, वो हमको क्या पता है ये क्या होता है, जेड, इट्स जी, जेड। भाई 10 साल मैंने स्कूल में पढ़ लिया, अभी भाई, तक हमको क्लियर नहीं पता है कि मुझे- एजुकेशन होता है कि एडुकेशन होता है। अरे सेम, मुझे अभी, अरे तुम मानोगे नहीं, मुझे अभी 2 महीने पहले पता चला कि इट्स नॉट पोएम, इट्स fucking पोम, poem. इट्स पोम, Poem. इट्स अरे, पोम। Can you imagine a kid saying poem? Poem It's कैसे like- बोलोगे यार? It's like a Even though- person saying virgin mojito or virgin mojito. Even though now I know that it's poem, I will never pronounce it as poem. Same कभी here. नहीं जिंदगी में। Same मैं goes to पोएम me. ही बोलूंगा, Because it's हाँ, मैं subconsciously, पोएम ही बोलूंगा। yes, exactly, it's subconsciously embedded into our minds to pronounce it that way. सबकॉन्शियस छोड़ दो, मैं चूतिया थोड़ी हूँ, पोम बोलूंगा यार, वही कैसा तो लग रहा है है। सुनने में, पोम। पोम, भाई पॉम पोम। पकड़ा दिया किसी ने। पोम। पोम, खैर, okay. हाँ। So you are talking about the evolution of memes. Yes, evolution of memes, and I think कि इसका ना बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे अंबानी को, and I mean there's a How? reason, क्योंकि इंटरनेट जियो। सस्ता हुआ, जियो everyone would agree to it. जियो ने सस्ता मेरी किया, अभी- जियो ने एक्सेसिबल किया हर किसी को, हर कोई इंसान इंटरनेट पे आ रहा है, हर कोई इंसान तो शायद नहीं करना चाहिए था भाई, नहीं करना चाहिए था। पता है, अब इतना पहले- cringe चीज़ है ना इंटरनेट भाई, पे कि सच में, लगता है कि सच नहीं में। करना चाहिए था। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। मेरी इंस्टाग्राम बायो ही अभी यही है कि जियो एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब अर्लियर मैं कॉन्सिक्वेंस हूँ जियो का। अर्लियर इंटरनेट यूज्ड टू बी अ लग्जरी। आई रिमेम्बर 200 रुपए में 1 GB मिलता था, और वो भी महीना 2G भर मिलता चलता था था या यार, 3GB महीना मिलता भर था, पीपल और महीना भर चलता था, और Seriously, पूरा का महीना अभी चलाना यहाँ पड़ता 15 था। रुपए का कूपन कोई मिलता choice था नहीं है। स्क्रैच करके, हाँ, स्क्रैच करने वाला भी टाइम था। स्क्रैच करके। अब देखो, और मेरे सामने, पता है, मेरे 2016 में तो हम सब ने देखा होगा, अरे लाइन लगी है, पूरा शहर अरे जाम हो रखा है। सीरियसली, इट्स लाइक भाई, इतना लोग फ्री तो में लोग, सिम लेने लगे हैं, फ्री में सिम, फ्री में इंटरनेट। हाँ नहीं पता है, अंबानीज आर वेरी स्मार्ट, अंबानीज आर वेरी स्मार्ट, इट्स लाइक उन्होंने भानु, लोगों आई को नो लत यू आर अ लगवा स्टूडेंट दी। ऑफ MBA,
if you're a student of MBA, you must be knowing that this is sort of illegal. It comes under the ambit of predatory pricing. Yes. इसको हम कहते हैं हम्म। ये ये एक मार्केट कंपनी अगर पोलराइजेशन हो अपने गई एक तरीके से. हाँ This is हाँ market अगर polarization. एक कंपनी अगर जैसे कि हम कंपटीशन लॉ में पढ़ते हैं कि अगर एक कंपनी डोमिनेंट पोजीशन पे है तो वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज भी तो कर रही है. कैसे कर रही है वो? आप एक कंपनी अगर समझ लो वो अफोर्ड कर सकती है कि वो सस्ते में इंटरनेट दे दे या फ्री में इंटरनेट दे दे, उसको लॉस नहीं हो रहा है, वो लॉस में नहीं जा रही है, तो वो ऐसा कर रही है. बट दिस इज अब्यूज ऑफ इट्स डोमिनेंट पोजीशन. तो Exactly. जियो ने वही तो किया, उसने फ्री में इंटरनेट दिया. भैया देखो हमारा इंटरनेट काट हाँ, मत उसकी देना, वजह से लेकिन कोई कितनी ये सुन कंपनी के बंद हुई है. हमारा इंटरनेट काट मत देना कोई. हाँ. हाँ, कितनी कंपनी बंद भी तो हुई उसके बाद. वो भी तो पहले कहाँ डोकोमो हुआ करता था, डॉल्फिन हुआ अरे करता था. टाटा यूनिनॉर. अरे you my हुआ करता था. pumpkin hello And honey पता है? bunny. y'all remember that? कहाँ से ऐड होती थी? हनी बनी. हाँ पता है, they used to capitalize on this girlfriend boyfriend thing. वो कहते थे कि हम हमारा पैक लो, हम रात को तुमको फ्री टेक्स्ट मैसेजेस देंगे. उस टाइम पे क्या होता था, एसएमएस पे बात करते थे. हाँ ठीक हाँ है, हाँ. आवाज आ रही है? हाँ. उस टाइम पे एसएमएस पे बात होती थी, तो एसएमएस का तो पैसा लगता था. अब 1-1 रुपया कट रहा है हर एसएमएस का. उस टाइम पे वो कहते थे कि हम रात के 12 बजे से सुबह के 6 या 5 बजे तक फ्री में एसएमएस हाँ. सर्विसेज देंगे, क्योंकि Same. उनको पता है True. इस वक्त जो होते हैं ना लड़का लड़की ज्यादा लगे रहते हैं रात को. Yes. And वो Text ना message. वो डब्बे वाले फोन होते हाँ. थे जिसमें ना 4-5 बार दबाओ तो ऐसा डब्बे होता वाले था. फोन. और उस अरे टाइम ना एब्रिविएटेड लैंग्वेज वो एस सॉरी. एस लिखने के लिए 6 नंबर को 4 बार दबाना पड़ता था. Yes, हाँ. exactly, एस exactly. लिखने के लिए. पर अपनी कभी उम्र नहीं होती थी. अपना ऐसा था कि किसी को मैसेज कर दो तो ये भी लिखते थे कि भाई रिप्लाई मत करना, मम्मी का फोन है. ऐसे. ये 2000 True, very true. ये 2006 और 2006 के बाद वाले बच्चे मतलब इतनी लग्जरी में पले बड़े हैं ना, इनको पता ही नहीं. मतलब यू इमेजिन अ किड बोर्न इन 2006, वो 10 साल का था जब जियो आया. ठीक है, Seriously यार. तो उसको I 10 mean, साल के बाद ही फोन मिला होगा. उसने कभी डब्बे वाले फोन देखे ही नहीं. अरे सीरियसली इट्स लाइक अभी भाई 4th-5वीं के बच्चे आईपैड लेके घूम रहे हैं. मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में जाने वाला हूँ. भाई मेरे इतनी पापा जल ने जाती है मेरी. मेरे पापा ने I have never owned an iPhone. कभी नहीं सेम लिया. है सेम मैं भी है नहीं. सेम मैं है भी सेम नहीं. है. ऐसा नहीं कि ले नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि ले नहीं सकता, ऐसा नहीं कि अभी ऐसा है कि अभी ऐसी कोई डायर नीड नहीं है ना मेरी कि बहुत इमीडिएट नीड कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं मरी जाऊंगा हाँ. बिल्कुल. एग्जैक्टली. हाँ. इट्स लाइक मतलब तुम्हें चाहिए, मतलब अभी चाहिए भी नहीं. वो लोगों को पता है, डिफरेंस नहीं पता होता. इट्स लाइक तुम्हें चाहिए लेकिन क्या तुम्हें उसकी जरूरत है. यू वांट इट बट यू नीड इट. I was actually watching a YouTube चैनल पे एक वीडियो, आदित्य सैनी नाम का चैनल है, वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है मार्केटिंग पे. तो वो कह रहा था कि आईफोन और ये जितनी भी ब्रांड्स होती है ना, ज़ारा, दे डोंट सेल यू प्रोडक्ट, दे सेल यू लग्जरी. यस, वो दे तुमको सेल यू एक status लग्जरी. दे सेल यू स्टेटस. यस. वो तुमको एक स्टेटस आईफोन लेके वैलिडेशन मिलता है कि हाँ हाँ, अमीर हाँ, आदमी. यस. ऐसा. एंड यू नो और पता है एक चीज, बस 1 मिनट मैं हाँ, sorry. थोड़ा ज्यादा बोलता हूँ जब मैं बोलने लगता हूँ. तो वो कह रहा था कि इफ यू बाय एन आईफोन, इफ यू सी अ किड विद एन आईफोन, तो अब तुम उससे पूछोगे ना कि तुमने आईफोन क्यों खरीदा, तुमको जरूरत क्या थी. हालांकि उस बच्चे को भी अंदर से पता है कि उसने ये सोशल सिंबल स्टेटस के लिए लिया है, स्टेटस सिंबल के लिए आईफोन खरीदा है. बट देन टू जस्टिफाई दैट ही विल फाइंड एक्सक्यूजेस कि इसका कैमरा अच्छा है, इसकी इसका स्टोरेज टच अच्छी अच्छा है, है, ये इसमें अपडेट्स बहुत आते हैं. सिक्योर है. यस. हाँ, तुम ये कौन हो उसको भाई? एग्जांपल जस्टिफाई मेरा एक करने दोस्त के रीजंस देगा. मेरा एक दोस्त है. हाल- मेरा एक हाँ दोस्त है, जी. उसका कैसा पता है कब वो एडिटिंग कर रहा है. ठीक है, उसका ये कि ब्रो मैकबुक लूंगा ना, उसमें एडिटिंग अच्छी होगी. अब ब्रो तू फोटोशॉप चलाता है, तू कौन सी एडिटिंग कर रहा है जो तेरे को, कोई सा नॉर्मल लैपटॉप लेगा हो जाएगा उसमें. अरे वो और सिक्योरिटी. स्नैपसीड वाले And लड़के y'all know the security excuse sounds so lame to me. I mean, some people might care about the security, but भैया तुम हो कौन? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो तुम्हारे फोन में वही तो, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है और लोग निकाल के ले जाएंगे. क्या हो जाएगा भाई? nobody cares about your phone. ये एग्जैक्टली No, nobody but- gives a fuck about your existence. भाई Yes, लास्ट ईयर वो that is- टीम कुक आता है आईफोन के लॉन्च को और बोलता है कि अभी से हमारे फोन में नया फीचर्स है डुअल सिम. मैं बोल रहा है भाई तू अभी जा रहा है क्या? कब से आ गया डुअल सिम? अभी डाल रहा है. आईफोन ने तो पिछले 5 मॉडल आईफोन के एक ही जैसे हैं यार, कुछ अलग तो हो ही नहीं रहा, मुझे दिख ही नहीं रहा है. मैं खरीदता नहीं हूँ, बट मैं भी देख रहा हूँ मेरे दोस्त लोग लेके घूमते हैं. इट्स हार्ड टू डिस्टिंग्विश 12 है या 13 है या 11 है, हाँ, कौन सा क्या वाला है? सब सेम ही रखते हैं. सब सेम Seriously, लगता है. seriously, that's very true. और That's ऊपर very से true. और आजकल की ये फोन्स के पीछे 4 कैमरे लगा रहे हैं. भाई आई हैव ट्राइपोफोबिया, आई हैव अ फोबिया ऑफ क्लोजली स्पेस्ड होल्स, है ना. Okay, They scare the shit out of me. that's a phobia. So What's हाँ, it that called? is a phobia. It's called trypophobia. Okay. The fear of
क्लोजली स्पेस्ड होल्स, अगर एक जगह पे ना जैसे मधुमक्खी का छत्ता है, हाँ हाँ मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारे होल्स होते हैं विच आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड, तो उसको देख के आदमी के अंदर ना एक एप्रीहेंशन होता है, डर का होता है, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, दिस इज कॉल्ड ट्राइपोफोबिया। लाइक आई हैव इतना सीवियर ट्राइपोफोबिया ना, व्हेन आई ब्रश आई कांट लुक एट दिस सिंक, मैं सिंक नहीं देख पाता हूँ क्योंकि सिंक में ना होल्स होते हैं। हाँ हाँ, इतना ट्राइपोफोबिया है मुझे, बहुत वाओ मतलब हाँ लाओ। तो भाई या वी वर मेरा टॉकिंग दिमाग थोड़ा अबाउट, गंदा जा रहा है पर ठीक है। seriously I mean अरे I I didn't know things like this existed seriously नहीं, you should अच्छा never ऐसा क्या? Google it. अच्छा ऐसा क्या क्या? The less you know, the better. अच्छा ऐसा क्या, शाउट आउट टू अच्छा ऐसा क्या। yes shout out to अच्छा ऐसा क्या हाँ, तो he was talking about how you enter a Nike store, एक नाइकी के जूते के शोरूम में जाओगे और इसका 99% चांस है कि तुमको अगर एक जूता पसंद नहीं आया ना तो तुम खाली हाथ बाहर नहीं आओगे, yes you will always come out of that store with a Nike shoe, तुम कुछ ना कुछ तो खरीद के आओगे ही बाहर से, वहां से, yes क्योंकि yes वो तुमको एक लग्जरी बेच रहे हैं, एक स्टेटस सिंबल बेच रहे हैं तुमको, तुम exactly वहां गए क्यों, लेने के लिए तो गए हो, और तुमको पसंद नहीं 80,000 आएगा के ना, जूते लेकिन फिर भी आएंगे तेरा घर जाएगा इसमें 80,000 के जूते तो, घर जाएंगे घर बिक इसमें, जाएगा इसमें। तो घर बिक तुम जाएगा लेके ही तेरा आओगे इसमें बाहर। हाँ, तो so yeah, seriously Jio, man I should say Jio was a mistake, है ना। अभी yes करंट सिनेरियो देख के तो मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि इंटरनेट शुड हैव बीन अ लग्जरी, luxury मतलब नॉट seriously इन एनी कंट्रोवर्शियल फॉर्म, बट जो कि तुम कंटेंट देख रहे हो आजकल, है ना, पीपल आर डाइंग जस्ट बिकॉज दे आर टेकिंग सेल्फीज, दे नीड कांस्टेंट वैलिडेशन ऑन इंटरनेट, दे आर अरे डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। seriously हाँ seriously and I'll like to add something to this. I recently saw this documentary. It was about teens in America leaving their education to make a career out of TikTok. People are legit doing हाँ, this. People are I've heard literally doing about this it. in the Western People countries. are Can you believe that? dropping out of तो colleges, टिकटॉक की डिग्री dropping आई out है। of top colleges. हाँ Seriously. And it's not like it's going to sustain you for your lifetime. No, it's yes not. yes, भुवन 10 बाम ने साल कहा की था, 10 साल का पीक होगा भाई तुम्हारा, 10 साल की यूथ होगी, उसमें जो करना है कर लो, उसके बाद अब क्या। वो भी नहीं होगा। अच्छा, अरे अब वो भी नहीं होगा, पता है भुवन बाम ने एक बारी कहा था कि उसके टाइम पर जियो से पहले भुवन बाम आ गया था, ही केम अराउंड 2015 में आ गया था ना। यस 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 हाँ, तब दो ही लोग उस हुआ टाइम पे करते थे यूट्यूब पे इंडिया के जिनके 1 मिलियन हुआ करते थे, भुवन और संदीप महेश्वरी। हाँ बस। यस हाँ, तो उस टाइम पे ना क्लास होती थी, दो क्लासेस थी, एक होता है कंज्यूमर और एक होता है प्रोड्यूसर, ठीक है, एक होता है जो क्रिएटर है, जो प्रोड्यूसर है, और एक होता है कंज्यूमर। अब उस टाइम पे एक क्लियर डिमार्केशन था दोनों के बीच में। अब जियो के बाद क्या है ना यार, इंटरनेट बूम, अब रिक्शा वाला भी टिकटॉक बना रहा है, सबके पास अपने ब्लॉग चैनल है, तो वो कंज्यूमर सब हो गए हैं, कंज्यूमर कोई रहा नहीं, सॉरी, और प्रोड्यूसर सब हो चुके हैं। एग्जैक्टली अब नो ऑफेंस टू रिक्शा वालास, दो भैया माफ करना, हाँ हमको रिक्शा नहीं, चाहिए। नो ऑफेंस, ये तो कहीं से कहीं तक कोई ऑफेंस है ही नहीं, देखो सबके पास राइट है अपनी लाइफ एंजॉय करने यस का। एवरीवन यस तो वो एक जो होता था कि अब एक हम पहले सुनते थे ना कुछ कुछ यूट्यूबर्स के नाम जो बहुत प्रोमिनेंट है, जैसे हम भुवन बाम कहते थे, या कोई आशीष चंचलानी कहता था, या हर्ष बेनीवाल कहता था। अब तुम किसका नाम लोगे, इतने सारे हैं, किसी का नाम याद भी नहीं रहता है। अभी वो Yes. सौरभ जोशी है ना, सौरभ जोशी है ना, वो मेरे शहर का है, वो मेरे शहर का है, कोई नहीं, मतलब ऐसा कुछ बज नहीं रहा कि यार यार सौरभ जोशी अपने शहर का है, इट्स नॉर्मल। अब सबके पास यूट्यूब है, सबके अपना अपना चैनल है, नागपुर ठीक की है, तुम्हारे मिलियन पब्लिक बोले तो तकलीफ। तुम्हारे मिलियन फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इट्स ओके, सबके हैं आजकल, हाँ नॉट अ बिग exactly थिंग। दिस इज exactly अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ जियो, दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ जियो। that's very true it's like everything has got a positive side and negative side to it, मतलब भैया जो है वो पॉजिटिव है। साइड तो यार बहुत, पॉजिटिव साइड तो हर जगह ही है ना, मैं तो नेगेटिव के बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करेगा ना, दिखती नहीं है, हाँ अब yes वो बता रहा exactly हूँ। yes that's very true and अभी ये मीम वीम तो हो गया, थोड़ा म्यूजिक के बारे में बात करा जाए। मैं बोलता हूँ थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं फिर वापस आते हैं, ठीक है? Okay, हाँ, let's I need to take a break. Let's take hydrate a myself. breather. चलो। Okay, so now we're in the second half and we've got a new member on board as well. So now going on board with Harshmali. Sorry, Harshwali, आपके तरफ जाते हैं हम, हमारे संवाददाता। मुंबई से
तो अभी हमारे साथ है स्टीव एक्स मून, इसका भी अच्छा खासा पेज है। कितने फॉलोअर्स है भाई तेरे? भाई 8.6 के। Oh my तेरे God. बाजू में कौन बैठा है तुझे पता है? तेरे स्लाइड के बाजू में कौन है? हाँ, गानेश शाह ने, गानेश शाह ने। जिसको देख के मैंने स्टार्ट किया था। See, गाने Yes. शाने देखो अस्ताव भाई फैन मूवमेंट हो गया भाई पता है, podcast you पे। don't have to say that. पता है, मतलब बहुत ज्यादा अजीब लगता है, शर्मिंदा होता हूँ मैं. Don't have to say that. फैन फैन मूवमेंट्स भाई, मोमेंट हो फैन गया भाई, मूवमेंट्स। फैन मोमेंट। ऐसे किसी दिन अपना मैंने पर भी autograph- मैंने भी सुरूरगैज़म को देखा था और I got very inspired and pumped up to start my own page. So yeah, somebody inspires somebody. ना? I'm really sorry लेकिन people. कितना हम्बल आदमी है, डाउन टू अर्थ ब्रो। Okay. हम किसके बारे में बात कर रहे थे? We First were off में? talking. We were talking about memes, I guess. Yes. हाँ. अच्छा मीम्स के बारे में कम, इंटरनेट के wanted- बारे में गाना बोल दिया। Yeah, Yeah. I have an urge to talk about that guy. Since we were talking about memes, we missed Hindustani Bhau, है ना, 2019. तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने Ah. Let's talk about जय हिंद। 2019. जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। Menace. जय हिंद दोस्तों। The menace. He was a menace. मतलब इतना टॉक्सिक आर्मी उसने बनाई खुद के दम पे. मैं नहीं मानता भाई नेपोलियन ने भी इतनी खतरनाक आर्मी खड़ी करी होगी जितनी उसने अकेले गाली देके अपनी बच्चों की आर्मी शुरू कर दी थी. अरे आई हैव एनकाउंटर्ड इट. एक बारी हुआ क्या था ना, देयर वाज अ गर्ल स्टैंड अप कॉमेडियन थी जिसने कुछ अपेरेंटली कुछ मजाक बना दिया था हाँ हाँ किसी हाँ गरिमा हाँ जोशी। राइट 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 गरिमा राइट। जोशी। है ना. तो फिर उसके रिप्लाई में शुभम है ना, वो शुभम हाँ, जो हाँ, गाली वाली देता था badass, बहुत गाड़ी में बैठ badass, के, badass बैडा शुभम। शुभम. ही हाँ। मेड अ वीडियो इन रिप्लाई. तो उसने कहा था तेरे को सपेरा शॉट मारेंगे एंड ही यूज डेरोगेटरी हाँ, वर्ड्स. हाँ। याद है. तो you know that Hindustani Bhau was justifying his actions. Hindustani Bhau was justifying what Shubham said, and then he made a video and he जब उसको hate मिला कि तुम how can you justify a rape, how can you justify rape threats, तो then he made a video and he said ठीक है, आज से तुम लोगों को, मतलब victim card खेला था कि आज से तुम लोगों को मेरी जरूरत नहीं है, so आज से मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा ये वो. To I'd which like to add one thing into it as comment- well. I'd like to add one thing. I'm really sorry. Hindustani Bhau actually had this fan meetup in Nagpur. Legit, भाई, more भाई- than 8,000 people showed up. Legit, more than हाँ, भाई 8,000. तुझे वो छोड़, वो Yes. छोड़। हमारे कॉलेज बाजू में कॉलेज है, उसके कॉलेज का ना चीफ गेस्ट था वो, अरे वैक्सीनेशन यार कैंपेन का। बता क्या बोलूं अब भाई मैं? यार, डाउन बैड कॉलेज. वो कॉलेज क्या बहुत What बोलूं? the मतलब fuck? ब्रोकन बियॉन्ड रिपेयर जिसको मैं कहते हैं. down bad हो गया हूँ. यार हाउ कैन यू हैव हिंदुस्तानी बाहू एज अ चीफ गेस्ट. वो क्या बोलेगा ये वहाँ? बच्चों के कॉलेज में, उसको- बच्चों के कॉलेज। उसको कहेंगे स्पीच दो, वो क्या बोलेगा बाबा? व्हाट डू यू He'll एक्सपेक्ट? just show up तेरी and माँ say तेरी बहन, patriotic तेरी माँ तेरी salutation. ए, देखो यार, यार, patriotism is good. Patriotism has मतलब- to be there. People should be nationalistic. That is my opinion. जिसको नहीं करना है मत करो देखो, भाई. But दी limit ओनली होती है फनी भाई. थिंग दी ओनली फनी थिंग उस आदमी के बारे में एक चीज जो मुझे फनी लगती है वो है वो सफिक्स और प्रीफिक्स बहुत अच्छा सिखाता है ना. मतलब तेरी अपशब्द तेरी. निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल. और वो एंड में भी लगाएगा तेरी. ऐसा उंगली पे तेरी दी तेरी 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 you don't have अपशब्द fingers. तेरी. हाँ. वो कंफर्म कर रहा है कि तेरी ही बात कर रहा हूँ 2 बारी कह के. तेरी अपशब्द तेरी. हाँ, हाँ. वो बंदा मराठियों के दिल्ली का है. हाँ. मैंने नो ऑफेंस टू दिल्ली पीपल. Delhi people know offense. Marathi Volume 1. हाँ. तो हुआ क्या था ना, मैंने उसके पोस्ट के नीचे कमेंट कर दिया था कि यार ऐसे ही करा था, कुछ गाली नहीं करी थी मैंने बस लिखा था कि मतलब यू आर ऑलरेडी ऑफ नो यूज, तेरे होने से क्या भी हो रहा था देश को, मतलब यू आर इनसिग्निफिकेंट. तो फिर मैं सो गया वो कमेंट करके. और भाई मैं उठा 1 घंटे बाद और मेरे पास 600 कमेंट के रिप्लाईज थे और डीएम में 100-150 मैसेजेस थे. दे वर गिविंग मर्डर थ्रेट्स, लिटरली रेप थ्रेट्स. दे वर सेंडिंग पिक्चर्स ऑफ, है ना, कट्टा. घोड़ा. Hmm. हाँ. और दे वर ट्राइंग टू वीडियो कॉल मी, दे वर ट्राइंग टू ऑडियो कॉल मी थ्रू इंस्टाग्राम प्राइवेट. अरे भाई मतलब भाई डबल चेक इतना करना था, सब- लड़कियां तो नहीं थी. फीबल माइंडेड पीपल उनको जरा सा भी क्या सेंस है, क्या सही है क्या गलत है, कुछ नहीं होता है उनके पास. टॉक्सिसिटी So, सेल्स यार, टॉक्सिसिटी सेल्स.
हीरो वर्शिप Like- करने लगते हैं ना किसी हम्म। इंसान की हीरो वर्शिप करोगे तो ऐसे ही होता है यार। वही और भाई वही हो जाता है ना फैन बेस का। अभी देख बीटीएस आर्मी का Fan देख, base। बीटीएस कुछ भी करता रहेगा, किसको बता, हाँ मैं भी सुनता है नहीं सुनता, कोई हेट नहीं है उसकी। तो उन लोग की जो जो आर्मी वगैरह जो भी हाँ बोलते हैं उनको, देखो आ जाते इंडस्ट सीधा डीएम में पैराग्राफ लिख के। बट See, यार आई डोंट इवन हेट बीटीएस क्योंकि देखो हाँ ना नहीं करता है कोई, मैं पर उनका फिर भी। म्यूजिक सुनता भी नहीं हूँ हाँ बट हाँ हाँ अब मैं क्या बोलूँ लेकिन वो ट्रिगर सेल्फ करके ना अंडरस्टैंड। अटेंशन ले लेते, या जानबूझ के करेंगे, कमेंट्स में रीच बढ़ेगा, शेयर होगा, ये ये होगा वो होगा। हाँ अब सुशांत ने मतलब कितना अच्छा आदमी था, उसका फैन बेस थी, क्या क्रिंज करके रख दिया मैं मनोज वाइस। जिंदा हूँ। देखो यू विल नेवर हाँ फाइंड एक मिनट you will राजपूत। there's a sort of difference. You will never find a KK fan arguing with someone, abusing someone, or doing any sort of shit like that. क्योंकि एक आदमी एक लीडर होता है ना, उससे पता चलता है उसका फैन बेस कैसा है। अब केके वाज नॉट सॉर्ट ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ गाय कि वो Seriously. किसी को कंट्रोवर्शियल था ही नहीं ना, तो उसकी हम्म। कितने You आसानी reflect. से कितना Yes. हाँ जब उसका अभी लास्ट राइट्स हुए लास्ट रिचुअल्स हुए कितने आसानी से लोग मतलब कितनी इजीली लोग आए और गए, कोई हंगामा नहीं कोई कुछ नहीं, नो जस्टिस फॉर केके नथिंग लाइक दैट Yes. है ना। And did y'all see people gathering in a certain place and हाँ singing KK's बहुत songs? That was so yes हाँ wholesome. हाँ That हाँ was so हाँ wholesome. so हार्ट wholesome. वार्मिंग वेरी होलसम। So आई भाई वाज I KK पे swear बात हो ही रही है, the wall KK पे बात हो ही रही है, तो हाँ I think we should continue with it. So what? अब जैसे अब हमारे पैनल में KK, मतलब हमारे पैनल में अभी 4 लोग हैं। सभी केके फैन है, कौन नहीं सारे है। KK फैन है, आई एम ये अज्यूमिंग कौन सारे नहीं है KK यार फैंस हैं। केके फैन। हाँ तो KK फैंस, अब मेरे को ये बताओ कि तुम्हारी एक नॉस्टैल्जिक मेमोरी होती है लाइक रिलेटेड टू सम सॉन्ग, हाँ हाँ केके हाँ के देख मैं कौन? बता मैं ओके स्टार्ट करता हूँ, मैं स्टार्ट। ओके हाँ ठीक हाँ है। ओके हर्ष हर्ष हाँ, हर्ष किकी का हमेशा से कैसा रहा पता है क्या, कि किकी के गाने सब लोग ने सुने, उसके बारे में जानता कोई नहीं था। मतलब अगर तू देखने जाएगा तो अगर जब केके की डेथ हुई तब लोगों को बोला ना कि केके का डेथ हुआ है करके, लोग बोले थे अरे कौन केके वगैरह, जो पीपल मसाला नहीं देता था पीपल कभी। पीपल वर अरे एक्चुअली लोग कमेंटिंग कैलाश खेर रेस्ट के इन पीस। हाँ कैलाश खेर के कैलाश यस यस खेर एग्जैक्टली हाँ 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 कैला लोग सोचे थे कैलाश खेर डाइड। हाँ हाँ हाँ। इतना इतना लो की तो आदमी था वो मतलब हाँ, पर जब बताया ना कि ये गाना उसने गाया था, सब बोलते हाँ भाई ये तो सुना हूँ, मैं लूप पे सुनता था पहले, हाँ दिस वगैरह दिस वाज वगैरह। मतलब उसका आर्ट ऐसा था कि आर्टिस्ट के बारे में कोई पता ही नहीं किया यस एंड वैसा। one thing about KK Steve would agree कि I see a lot of singers singing his song। अब कवर वर्जन तो सभी गाते हैं, हम्म। you may हाँ be exceptional, तुम बहुत अच्छा गाते होगे but you can never sing a KK song, ऐसा मैं मानता हूँ। why do I believe it? क्योंकि you can even sing a Kishore Kumar song with the same feelings, you can even sing even Sonu Nigam can sing a Mohammed Rafi song with equal expertise, equal excellence, but nobody will ever come close to KK क्योंकि KK की आवाज can never be imitated, सीरियसली इट mimicked, वाज वेरी कोई वैसी यूनिक, आवाज इट निकाल वाज नहीं वेरी सकता। यूनिक। बहुत अग्री। very unique, 1 in a billion, I swear to God 1 in a billion, no यस one can even come close to that voice। सीरियसली। I mean हाँ I wanted to witness एक बार की वो हाँ स्टूडियो में क्या सीन रहा होगा जब जरा सा पे उन्होंने पहली बार ओ ऐसा खींचा हाँ 40 सेकंड्स एक इंसान एक ही चीज बोल रहा है and एंड it is so melodious. ऊपर से ही wasn't classically trained, यस है ना। दैट्स वेरी वही ट्रू। मैं कह रहा हूँ, अगर अगर आज के दिन मान लो लेट्स सपोज आई एम अ सिंगर, आई एम अ वेरी ट्रेन क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर, और मैंने बहुत सालों से रियाज किया है और मैं केके का कोई गाना गाता हूँ, मैंने सारे सुर सही लगाए हैं, मैंने कोई गलती नहीं करी है, सब मेरा टेम्पो सही है, मेरा रिदम सही है, मेरा सुर सही है, सब सही है, लेकिन वो मजा ही नहीं आएगा। क्यों नहीं नहीं आएगा। आएगा? क्योंकि वो फील एक वो होता है ना, एक चीज होती है, बहुत लोग मानते नहीं इस चीज को, एक नॉस्टैल्जिया भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी सीरियसली गाने को हिट करने में। यस, तो नॉस्टैल्जिया उस टाइम प्लेज पे अ गाने, मेजर रोल। हाँ उस टाइम पे कोई हमारा गाना तो अगर घर हिट चल रहा है उससे भाई यार झूठ झूठ आदमी खुद से नहीं बोल सकता ना, बट सच तो ये है कि यस नॉस्टैल्जिया तो देखो भाई ऐसा होता है आजकल। अप्रिशिएट तुम पुराना म्यूजिक ही कर सकते हो। हाँ आजकल ना आजकल देखो जैसे सोनू निगम है, शान है, इवन दे सिंग सॉन्ग्स आज भी गाते हैं, लेकिन आज के उनके गाने वो हिट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि एक चीज होती है ना, जब एक होता है ना कि पूरा यूनिवर्स किसी चीज को बनाता है ना एक साथ, तो सब चीजें सही चलती हैं उस वक्त पे। 2000s में क्या था कि म्यूजिक डायरेक्टर्स भी उसी एक्सपर्टीज के थे, सिंगर्स भी उसी लेवल के थे, लिरिसिस्ट भी उसी लेवल के थे, माहौल ऐसी था, जो पब्लिक गाने सुनती थी वो भी ऐसी सुनती थी, जो मूवीज बनती थी वो भी ऐसी बनती थी, तो वो गाने एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इम्पैक्ट डालते थे। आजकल क्या है, आज भी सोनू निगम के गाने आते हैं लेकिन वो कोई याद नहीं रखता है, क्योंकि अब वो जमाना चला गया और वो
टाइम वापस फिर से कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो एक प्लेबैक सिंगर की वजह से रीजन नहीं होता है ना, बहुत कुछ, इट्स अ कॉम्प्लेक्स होल। मूवी भी रोल प्ले करती है, स्क्रीन प्ले, योर डायरेक्टर और योर लिरिसिस्ट और योर म्यूजिक, एवरीथिंग बेसिकली वो एक टाइम, वो जो एक एरा होता है ना, वो एरा इंपॉर्टेंट होता है। वो उस एरा में जो कुछ भी होता है, उस एरा में वो सब हिट होता है यस, ना, सारा उसके आगे ना एक्सपीरियंस, उससे सारा पहले। 2013 2013 लास्ट एरा था, मतलब कि हाँ जहां तक अच्छे गाने हैं, उसके बाद से अब गया। प्राइम म्यूजिक, प्राइम बॉलीवुड म्यूजिक हाँ, ended with peak था वो। 2013। उसके बाद 2013 तक ऐसा था कि सब अच्छी मूवीज थी, सब अच्छे गाने थे, आशिकी इक्का टू दुक्का लास्ट, कोई, आशिकी टू लास्ट। हाँ इक्का दुक्का कोई खराब हो गया तो खराब हो गया। 2014-15 के बाद से तो कुछ अच्छा हो गया तो हो गया, वरना बाकी मेजरली सब खराब ही हो गया। भाई देखो 2014 तो सुन के मेरी कोई मेरे करता को, आया तो आया। कोई 2014 हाँ सुन के हमको मारने मत आ जाना, ठीक है? हम नहीं स्टीव वांट और टू से इसमें ना समथिंग। एक ना ऑडियंस का भी एंगल है, क्योंकि नाउ इट इज वेरी इजी टू स्ट्रीम म्यूजिक, टू वॉच टेलीविजन, और ये सब चीजें बहुत इजी हो चुकी है। थिंग्स आर वेरी yes. पहले एक्सेसिबल। तुम्हें अरे रेडियो पे वेट करना होता था, तो दैट रिटेंशन एंड पहले अटेंशन हाँ स्पैन जो 60s। है ऑडियंस का, वो चेंज हो चुका है अभी। पहले तुम्हें अटेंशन स्पैन, सीडी हाँ जाके खरीदनी पड़ती थी, तुम अपने पेरेंट्स से पैसे जमा करके या नेट कैफे में जाके डाउनलोड करना पड़ता था, तो वो पैशन अलग था गानों को लेकर। हाँ आज भाई इट इज वेरी इसको इजी। याद है, हमारे याद है भाई, ये जब से जियो आया तब से साइबर कैफेज तो बंद हो गए, साइबर कैफेज का हाँ, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया भाई। पहले अरे पीपल यूज्ड टू गो टू साइबर कैफे टू प्ले गेम्स, टू स्ट्रीम म्यूजिक और सीरियसली, डाउनलोड पेन ड्राइव देते थे 2-2 GB की, भाई इसमें पिक्चर डाउनलोड करके डाल देना यार, इसमें या गेम फिर डाल दे गाने भाई, डाउनलोड इसमें कर फोटो देना। डाल दे, इसमें हाँ वॉलपेपर डाल दे भाई, गाने डाल दे। स्टडी मटेरियल। भाई मुझे आज भी नहीं पता कि मैंने इतने वॉलपेपर का करना क्या था। हाँ सीरियसली भाई डाउनलोड कर लेते थे ऐसे ही। सीरियसली I downloaded near about 5,000 to 7,000 wallpapers of WWE alone, और मेरे को पता नहीं मैंने उसका क्या किया, अरे कुछ नहीं I'll किया, tell बस you one रखे thing, ना। I'll tell you the same thing। मेरे मामा जी हैं, उनके वाईफाई था उस जमाने में, ठीक है मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ। I'm just किस stating a जमाने fact। में? like 2013, 2012, हाँ 2013। हाँ हाँ हाँ। सो फेसबुक नया नया बनाया था उस टाइम मैंने, भैया लीगली तो नहीं था लेकिन बनाया था। तो आई डाउनलोडेड समवेयर अराउंड 750 images of मैनचेस्टर यूनाइटेड के 700-800 फोटोज मैंने डाउनलोड करे और सारे फेसबुक पे डाल दिए, सारे। और एल्बम का नाम लिखा सुशांत मेमोरीज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसमें फोटोज कहाँ की थी? वही पता है, तू आज ये सब कर रहा होता ना तो तू किसी आयरनी या किसी डैंग पेज पे फीचर होता। हाँ और वो कमेंट कर रहे होते तेरे अंदर, तेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो, सही में और सुशांत का ही तुझे फेसबुक लगता तेरी अकाउंट तारीफ अभी हो रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का ऑफिशियल अकाउंट है। भाई मेरे को फेमस भाई करो। लेकिन मैं बता दूं सुशांत ना मैनचेस्टर यूनाइटेड का बहुत बड़ा फैन है, और अब वो लंदन जा हाँ रहा है पढ़ने के लिए, तो कितना अच्छा बात है कि ओह, वाओ। समझ रहे हैं? You know, पता है okay, this वो might जाके sound मैच absurd. देखेगा। This might sound absurd. One of the major reasons of me choosing UK over any other country to do my masters was Manchester United. फुटबॉल, Yes, फुटबॉल, ओके। football and Yeah. Manchester United. Like हाँ I have pre-planned on what day I am gonna watch Manchester United's match ताकि वो weekend मेरा खाली रहे। मैंने 6 महीने का पूरा चेकलिस्ट बना के रखा है कि ये दिन पे मैं ये करूंगा और इस दिन पे मैच देखने जाऊंगा। अच्छा, we coming back to what I was saying, Yes. I was talking about cyber किसी cafe। को याद नहीं भाई क्या बोल रहा था। हाँ अरे यही तो है, this is how exactly a podcast should be, conversation should be। कुछ structured नहीं होना चाहिए ना, इधर उधर जैसे बातें होती हैं, हम कहीं भी पहुंच गई बातें। तो हम कह रहे थे साइबर कैफे, अटेंशन स्पैन स्टीव मेंशन्ड, अब लोग मेहनत भाई नहीं भाई करते हैं, एक क्वेश्चन, पता है? सबका WWE फेवरेट मतलब कौन था हाँ wrestler? जॉन सीना। मेरा जॉन सीना, that would be very cliche। भाई मैं John लास्ट saying बोलता हूँ, John तुम लोग बोलो Cena मैं would लास्ट be very बताऊंगा। cliche। हाँ पहले सब बताओ, मैं बताऊंगा फिर। हाँ पहले मैं लास्ट बता स्टीव रहा भाई हूँ। बताओ। भाई मेरा तो रैंडी ऑर्टन था। जॉन सीना। रैंडी ऑर्टन है तेरा होता शान, तेरा शान मेरा, होता। पता है, शॉन माइकल्स। आई लव दैट गाइस मेरा चार्म। सीएम पंक, मेरा सीएम पंक फेवरेट। Oh! सीएम पंक इज द रियल ब्रो। उसका ऐसा वो 2 साल तक उसके पास बेल्ट था, वो रोज लड़ता था, रोज चीटिंग करके जीतता था, भाई, रोज चीट करता पता था, है, रोज जीतता था। I used to hate CM Punk, but you know, हाँ। later जब ना, मतलब मेरे को समझ में आया कि कितना सस्टेनेबिलिटी फैक्टर लगता है। भाई हाँ। देखो WWE फेक है,
but at the same time ए बोल के हट मत कर, मालूम है पर बोल मत. हाँ. ठीक है but at the same time when I was a kid मेरे को तब समझ में आया कि एक चैंपियन मेंटालिटी कैसी होती है. To be a champion you Yes, have to be exactly. toxic. You have to be हाँ. toxic. that In guy- order to be a champion, that in guy order was to a beat rebel. others, you have to be toxic. Yes, CM Punk was a rebel. हम मतलब बचपन में सब आइडलाइज करते हैं गुड गाइज को, जॉन सीना जैसों को, Yes, yes, yes. बट हाँ. बाद में हमको रियलाइज होता है ना कि व्हाई सीएम पंक वाज द वे ही वाज. Yes. क्यों? हम्म. मतलब उसको WWE का मैनेजमेंट भी पसंद नहीं करता था, ठीक है. वो बस एक एम्प्लॉय था वहां पे, सभी एम्प्लॉयज होते हैं बेसिकली, बट वो उतना पसंदीदा नहीं था. जॉन सीना वाज मोर लाइक अ बूट लिकर, Face. He was the face of WWE. बिकॉज ही वाज अ बूट लिकर. वो थोड़ा तलवे चाट चाट के थोड़ा सा, हाँ. ठीक है. ठीक है. सीएम पंक वाज नॉट दैट गाय. उसको लगता था कि हाँ मैं हूँ. तुम्हारे मेरे बिना अर्द भी गिर्द अरे दुनिया पर है. वो उसका भाई उसके पास 2 साल लगातार बेल्ट था और वो रोज लड़ने आता था, रोज चीटिंग हाँ. करके जीतता था, कुछ ना कुछ तो करता था. अरे उसके कुछ ना साथ में कुछ करता था, तो जीतता था. हाँ. याल रिमेम्बर नहीं पॉल, उसका वो मैनेजर क्या नाम था यार वो? पॉल हेमन. Paul Heyman. Paul Paul Heyman. Heyman. Paul Heyman. Yes, Paul Heyman. Oh my God. वो ब्रॉक लेसनर का भी मैनेजर था भाई. ब्रॉक लेसनर. Oh my भाई God. अभी गलती से WWE का चैनल लगा दो ना, ऐसा लगता है कौन कौन कार्टून आ गए भाई. हाँ. अब वो है ही नहीं. वो वही नहीं, वही now we realize ना, now we realize एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली वो एक एरा था ना जो हाँ. मैं कह रहा हूँ सुशांत 2000s का. उसमें चाहे मूवीज ले लो उस टाइम का, चाहे रेसलिंग ले लो या म्यूजिक ले लो, सब कुछ एलीट था. प्राय और आफ्टर भाई 2000 अंडरटेकर 7 बार मरा है, वो वापस हाँ आया है. उसका वो story केन का भाई एक वो आंख सच नकली है. है. अंडरटेकर ने उसका आंख निकाल दिया था. अंडरटेकर का वो उसमें भाई वो लास्ट सच जीवन है. है. और केन भाई मास्क पहनता है. इनके बाल आ जाते हैं. केन मास्क. हाँ. चलिए एक काम करते हैं, एक और ब्रेक लेते हैं और एक और थीम के बाद चालू करते हैं. शान भी आ जाएगा. Yes. ठीक है बिल्कुल. चलो. We're back. Yes, finally. यस. थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा जियो को गाली दे रहा था ना मैं, अंबानी साहब की नजर लग गई. थोड़ा सा नेट खत्म हो गया था. मैं कहा ले अब दे गाली. अब दे के बता. अब बोलना बीप. अब बोल. हाँ, अब मैं बोलूंगा. आई एक्चुअली wanted to talk about Instagram Reels. God knows. पता है, अगेन मैं आजकल YouTube कंज्यूम कर रहा हूँ ना, तो YouTube में मैं वीडियोस देख रहा था. आई केम अक्रॉस अ वीडियो which was talking about the emergence of TikTok. मतलब ये ऐसा कॉन्सेप्ट क्या है कि यार तुम TikTok देख रहे हो? कहाँ से शुरू हुआ ये TikTok? भाई मैं बताता चाइनीज हूँ. हाँ सबसे है. पहले ना डब स्मैश आया था. Yes. Dub Dub Smash, Smash. yes, exactly. You know what? I made a few musically. I made a few Dub Smashes back in 2015. और अब मुझे बहुत शर्म आती है. वो अभी भी मेरे दोस्तों के पास रखी हैं. वो बर्थडे के टाइम पे धमकी देते हैं कि लगा देंगे. बस सब मेरे को मिल गया. भाई म्यूजिकली तो मैंने भी बनाई थी. Coming back to what I was saying, I'm sorry to interrupt, guys. I'm really sorry. I just want to talk about it. There was a Chinese app. ठीक है, Chinese app था which was made for news. के न्यूज लोगों को पता चले. Basically it catered to the mass in general के लोग न्यूज पढ़ेंगे और आर्टिकल्स पढ़ेंगे और स्वाइप करेंगे ऊपर को. बट वो ऐप फेल हो गया. पता है क्यों? उनके जो डेवलपर्स थे उन्होंने एक चीज नोटिस करी जब एल्गोरिथम उसका स्टडी किया गया. पहली बात, किसी को न्यूज नहीं पढ़नी है. दूसरी बात, अगर न्यूज पढ़नी भी है ना तो जिसमें वीडियोस है ना, जिस न्यूज में वीडियो है वो वीडियो लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. तीसरा, लोगों का अटेंशन स्पैम, जैसे स्टीव ने मेंशन किया था ना, अटेंशन स्पैम बहुत कम होता है. तो लोग 15 सेकंड या 20 सेकंड से ऊपर की कोई वीडियो देख ही नहीं रहे हैं. वो क्या करते हैं, 15 सेकंड एक वीडियो देखते हैं, फिर उसके आगे चलो आगे बढ़ो. तो व्हाट दे डिड, दे मेड अ स्पेशलाइज्ड ऐप फॉर दिस कि अब हम सिर्फ 15 सेकंड की वीडियोस दिखाएंगे लोगों को, क्योंकि लोगों को इतना ही देखना पसंद है. दैट इज हाउ टिकटॉक केम इनटू एग्जिस्टेंस. और अब एक्चुअली हाउ ऑफन डू यू गाइस फील लाइक ट्रैवलिंग? जब तुम ट्रैवल करते हो, डू यू फील लाइक अ मेन कैरेक्टर कि तुम खिड़की के पास बैठे हो और हेडफोन डाले और बारिश हो रही है एंड यू फील लाइक ये गाना बज रहा है और तुम मेन कैरेक्टर हो? हाँ. तो एवरीवन, नॉट इवन इंडियंस, सबके पास, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबके पास एक ह्यूमन नेचर होता है कि अपने आप को एज अ हीरो देखना है, एज अ मेन कैरेक्टर देखना है. तो व्हाट दे डू, दे ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन दैट. एवरी पर्सन हैज एन इनहेरेंट वांट, अ ड्रीम टू बी एन एक्टर. ये सुपरस्टार पर्दे पे आना है.
तो Yes. वो वही वो हमको प्रोवाइड कर रहे हैं 15 सेकंड 20 सेकंड्स ऑफ फेम विद लिप सिंकिंग विद म्यूजिक विद एक्टिंग्स विद ट्रांजिशंस Yes. they give it's like supply and demand. हमको वो चाहिए, उन्होंने हमारी साइकोलॉजी पढ़ी, उन्होंने हमको यही दिया कि Yes. इनको एक्टर बनना है, इनको हीरो बनना है, इनको 15 सेकंड 20 सेकंड दे दो. दिस इज हाउ टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स ओरिजिनेटेड. और ये जो गाने बनते हैं आजकल, दे मेक सॉन्ग स्पेशली फॉर दोज 15 सेकंड्स Yes. कि इस 15 सेकंड पे एक हुक सॉन्ग आएगा, पता है ना, कि कुर्ता पजामा हाँ काला 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 काला, है ना, वो 15 सेकंड रहेगा जो रील्स पे आएगा और वही चलेगा, ताकि वो इंसान के दिमाग में बैठ जाए वो गाना और Yes. पब्लिसिटी होती रहे गाने की. Yes. सो भाई एक्चुअली टोनी बादशाह तो कक्कड़ अभी वही करता है. है. हाँ, बादशाह का हुक बादशाह हुक एक लाइन होती है और फिर एक ट्रांस बिल्कुल जैसा बिल्कुल. ईडीएम म्यूजिक बज जाता है. हाँ, बादशाह, हम एक्चुअली इन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, बट दे आर वे मोर स्मार्टर देन अस, वे मोर स्मार्टर देन अस. उनको सब भाई पता है कि कैसे बिजनेस राखी होता है. सावंत टोनी कक्कड़ इज अ जीनियस, ही इज अ जीनियस नॉट इन म्यूजिक बट ही इज अ जीनियस इन मार्केटिंग. Yes. यस I'm the best. हाँ, तो मीम की ही बात इज कर रहे थे ना पैरागॉन. कि सो राखी सावंत ना अहेड ऑफ मतलब टाइम से बहुत आगे, मतलब लोग उसको ट्रोल करते हैं, वो दीपक कलाल हो गए, ढिंचैक पूजा हो गए, ऐसे लग रहा है कि लोग हाँ, ढिंचैक को मालूम नहीं क्या कि गंदा गाना बना रही है वो. Yes. तुम लोग सब ट्रोल मालूम करोगे, है उसका बाबा. बैंक अकाउंट भरेगा ब्रो. वो वो चीज हमसे ना 4 साल आगे हैं, वो हमसे 4 साल आगे हाँ, जी रहे हैं. और पहले सबसे भी पहले जब हम करने वाली कौन थी ना, राखी सावंत थी. और और राखी ढिंचैक सावंत. पूजा 2016 में भी अपने से 4 साल आगे थी जब उसको हाँ, कैरी उसको मिनाटी रोस्ट कर हाँ रहा वो था. तो हम एग्जैक्टली, उसको उसको उल्टा पता था, 2016 में सपोर्ट कर आयरनी रहे कर रही थे. थी. She was doing irony in उसको पता था 2016. कि देयर इज नो थिंग सच एज बैड पब्लिसिटी. अ पब्लिसिटी इज नेवर बैड, Yes. पब्लिसिटी इज ऑलवेज गुड. Yes. तो उसको पता था कि अब मैं इससे तो फायदा ही फायदा है, कुछ बुरा नुकसान तो है नहीं. यार भाई दे उसका वेरी स्मार्ट. शुरू हुआ था ना, क्या तुम हुआ था भाई हाँ, राखी पीपल वर सावंत. इमिटेटिंग. अब या तो तुम यू हैव टू बी द बेस्ट और द वर्स्ट टू बी फेमस ऑन इंटरनेट आजकल. या तो बहुत खराब यस होने चाहिए तुम उस चीज में, या तो बहुत अच्छे होने चाहिए. तभी भाई अभी देखिएगा ना, खराब चीज ना अच्छे वाले चीज को ओवरशैडो कर जाती है, वो ज्यादा वायरल हाँ, हो जाती है. अच्छी चीज कहाँ वही बहुत होती वही है. ज्यादा. लोगों को एक टेंडेंसी होती है दूसरे पे हंसने की, है ना. ह्यूमन नेचर, इट ऑल कम्स बैक टू ह्यूमन नेचर. हमारा नेचर क्या होता है, दूसरों पे हंसना. तो हम चाहते हैं कोई कोई बेवकूफी करे तो हम उस पे कोई हंसें. fuck up करे और हम हंसें. हाँ, जैसे आज अगर जितने हम मैं फकअप कर रहा हूँ, लोग इसमें से मीम्स निकालेंगे या फिर मजाक बनाएंगे, है ना, या हेट करेंगे. हाँ. No जस्ट सेइंग, publicity is a bad publicity, Shan. देयर इज नो सच थिंग एज बैड पब्लिसिटी. Yes. और बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि हमें लगता है कि आगे वाले को पता नहीं है, पर हम भी ये बोल जाते हैं कि पैरोडी नाम की चीज होती है. और बहुत हाँ, लोग जबरदस्ती पैरोडीज बनाते हैं, अपना चीजें और खराब करते हैं ताकि उसमें से लोग निकाल उस- पाए. ये भाई, ये दीपक कलाल, वही तो कह रहे हैं, दीपक कलाल को पता था. अरे हम पहले सोचते थे कैरी मिनाटी को, हम कहते थे अरे वाह दीपक कलाल को रोस्ट कर दिया. आज को देखो, दीपक कलाल का ज्यादा अच्छा ह्यूमर है कैरी मिनाटी से. भाई हाँ कैरी मिनाटी की रोस्टिंग स्किल्स इतनी इतनी दीपक ऑन कलाल का पॉइंट है ना. गाना आ रहा है, दीपक कलाल का गाना. ठीक है. सीरियसली लो उसको. नहीं यार, भाई पुनीत शाउट आउट सुपरस्टार की देना पड़ेगा यार. मर्चेंडाइज बिक रही है 2-2 हजार रुपए में ना. वो बर्थडे विश करता है लोगों को. तुम करके बताओ बर्थडे विश 2 हजार रुपए में. यार भाई मैं वेट कर दैट रहा इज हूँ, बताइए रियली क्या. absurd. Yes, I was gonna. भाई. हाँ हाँ बोल बोल. भाई अभी 5,000 हो गया उसका. अरे पहले हुआ करता था हाँ, 2,000. भाई हाँ 6,000 हाँ कर ले. 2000 कभी था ही 6,000 नहीं, कर ले. 5000 ही था. दैट गाय अर्न्स 5000 पर स्टोरी, और वो कुछ नहीं करता है. 200 रुपए का केक लेता है, 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक मुंह पे मारता है अपने, बस. अच्छा 250-300 रुपए के भाई इन्वेस्टमेंट में सोच, वो 5000. हाँ. बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर आई नो भाई, 15 सेकंड के 2,000 कमाना क्या होता है. व्हाट द फक. तभी मैं कह रहा था तुम जियो वाज अ 10 मिस्टेक. तुम करके 10 कितना टाइम लग स्लाइड जाएगा की एक पोस्ट गाँव बनाते में हो, उसके पीछे कितना दिमाग लगता है. पुनीत वो एक सुपरस्टार दिन के में साथ chat नहीं है. ठीक है. अगर बट उसने एक हफ्ते की कितना मांग रहा है हाँ, मालूम है? 15 सेकंड की वीडियो कितना की 2,500 रुपया. कितना 3 साल हाँ. कौन पहले. है. अरे बाबा, बर्थडे विश तो छोड़ो, अभी वो बीच में सबके कॉलेजेस का नाम ले रहा था ना, सबके कॉलेजेस का, स्कूल्स का शाउट आउट दे रहा था. उसके भी इतने 3-3 हजार रुपए ले रहा था सबसे. इंदू आईडी स्कूल का कर दे भाई. हाँ, किसने उसको इतना फेमस किया, किसने उसको इतना फेमस किया? मीमर्स ने. Yes, seriously. And you know, मीमर्स ने. the fact is कि humor these days is actually, how am I supposed to put it in a proper manner? I need to find words. ह्यूमर के पता ना है, वो होते हैं, स्टेजेस होते हैं. हाँ,
हाँ हाँ पता और है हम मेरी उसी कंट्री स्टेज पे हैं जिस स्टेज में हम 5 साल पहले थे। आई हाँ प्रूव इट हाउ। आज से भाई 5 साल इंडिया पहले में हम वीडियोस स्मार्ट देखते थे। स्मार्ट जोक नहीं चलता, तू अगर रिलेटेबल हो गया है ना तो तेरे हाँ मतलब वो चलेगा। इंडिया में कॉमेडी पूरा रिलेटेबल वाली ही चलती है, हाँ इतना भी रिलेटेबल serious मतलब बात नहीं चलती। राजू श्रीवास्तव कह रहा है मैं अपनी बीवी से परेशान हूँ, हाँ हाँ हाँ, उसमें हाँ बहुत तालियां बजेंगी, हमारे वही पापा फनी है, हंसेंगे, वही फनी है, ये एग्जैक्टली यही दैट्स हाँ फनी है, फनी, यही फनी है। दैट्स फनी, आज और and भी the एक सेकंड reason पहले mainstream और 20 things are gonna be lame, that's fact, 25 that's साल reality. 25 साल 25 साल की लड़की या लड़कों को तुम कह दो यार आई हेट माई लाइफ, आई हेट कॉर्पोरेट लाइफ, उनके लिए वो फनी है। जिसके लिए जो हाँ रिलेटेबल है ना उसके लिए वो फनी है। Yes, यही सिंपल सा फॉर्मूला है। yes, that's तो exactly very true. अभी आज से 5 साल पहले हम वीडियोस देखते थे, और वो अनफनी वीडियोस नहीं आती जिसमें पीछे से फनी सा टेक्स्ट हाँ वॉइस ओवर होता है, ओ नो 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 Oh, नो 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 वाला। 5 साल पहले हो सकता है कि हाँ हम उसको देख के जेन्युइनली हंसते थे। फिर बीच में हमको भूत सवार हुआ कि हमको डैंक बनना है, ये क्या नॉर्मल सी चीजें हैं, हमको बनना है डैंक। तो हम बने डैंक। ठीक है, फिर हमको लगा डैंक भी पुराना हो गया, बनेंगे आयरनी करेंगे हम तो। अब आयरनी करते करते हम वही मीम्स फिर से देख रहे हैं जिन पे हम 5 साल पहले हंसते थे, बट हम अब उन पे आयरोनिकली हंस रहे हैं। अब तो मैं ऐसा आयरनी क्या करता आयरॉनिकली हूँ, हंस रहे हैं। मैं आयरनी करता है? हूँ, आई एम सुशांत एंड आई एम मैं अलाइव. हाँ बताया क्या, यू अंदर ही कैन अंदर गेट लगता है कि भाई वो क्रिंज era ही अच्छा था, पता है क्या, कम से कम लोगों टैग करके हंस देता था। अभी तो इतना अच्छा मीम चाहिए मुझे हंसाने के लिए कि भाई मजा ही नहीं हाँ आता। एंड सीरियसली द स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल लाइक अस, मतलब हम लोगों को हंसाना इज एक्चुअली अ टास्क, अपने एज की उम्र के लोगों को who are पता है। exposed to such हाँ content, you know what I'm trying to आई say. जेन्युइनली फाइंड वन गाय वेरी फनी, अर्पित बाला कैन मेक मी फनी, कैन मेक अर्पित, मी लाफ, सॉरी। हाँ अर्पित यस, बाला कैन मेक मी लाफ। वो अर्पित पता है कुछ बाला नहीं भाई। करेगा, वो सांस भी लेगा ना मुझे लगेगा कि यार उसका इसने कुछ फनी किया है। आई हाँ फाइंड हिम नेचुरली फनी, एफर्टलेसली फनी। Yes, exactly. मैं गया लाल पात लैब, मैंने कहा यूरिन टेस्टिंग करा दो, मैं पी गया। क्या है ये? Oh my अभी god. अभी नॉट इवन एज कंपेयर टू वही फनी वाला एंड अदर इंस्टाग्राम कॉमेडियंस, ही इज द फनीएस्ट। Yes. नो यस कैप। जेन्युइनली। हाँ और So उसकी आयरनी तुम समझ भी नहीं पाते। yes, डैंक विष्णु, now इवन आई लाइक now डैंक विष्णु। now हाँ डैंक I विष्णु। I कम आता है। now I think that enough of internet and irony and हाँ all that. हाँ Let's हाँ move भाई on to इतना तो। music. Since गाने यस शाने यस और स्टीव दोनों म्यूजिक पेजेस हैं, हमने बहुत irony कर ली, हमने बहुत डैंक की कर ली, हम बहुत डैंक के चौधे हो गए. अब बॉलीवुड के नहीं, इंडिया आर्टिस्ट के बारे में बात करते Yes. हैं। अगर फेमस है। हाँ मैं करता हूँ स्टार्ट। तो हाँ आई लव इंडी, आई लाइक इट द मोस्ट। बहुत खूबसूरत म्यूजिक बनाते हैं, बट मुझे इस पॉइंट पे लगता है कि इंडी बहुत रेपिटेटिव हो रहा है, बिकॉज इट इज द सेम लिरिक्स, बारिश, बादल, धूप, छाव, चाय चाय। चाय, करुणेश तेरे तलवार का ना काल, एक्चुअली एक ऐसा सेट गुलाबी। था. Sorry Steve, sorry, I'm really sorry but I have to say it out loud. Karnesh हाँ Talwar, बोलो। if you all know him, उसका एक सेट था, तो उसमें ही says कि गाने भाई बहुत आसानी से बनते हैं, वही तो वर्ड्स हैं, मोहब्बतें, दिलरुबा, जाने मन, जाने जा, बेहया बेहया, फलाना ढिमकाना, दिल टूटा, ये वो, और बीच में सेक्सी सेक्सी लगा के देखो, बन गए गाने. हाँ एक्चुअली समीर यूज टू डू द सेम थिंग। उसने 2-3 मोहब्बत, उल्फत, इजाजत, इकरार, इसमें पूरे 90s का पूरे 10 साल गुजार दिए और गाने बना दिए 1500-2000। हाँ स्टीव, प्लीज So प्लीज भाई मुझे इंडी के और बारे में बताने दो, एक्चुअली आई वो लेट स्टीव टॉक अबाउट इट। yes, Steve. हाँ एक्चुअली वो बोल लिरिक्स रहा की चीज बहुत सही है, क्योंकि वही रेपिटेटिव लिरिक्स है। और जैसे प्रतीक कुहाड़ भी सुन लो, अनूप जैन भी सुन लो, कितने सारे सेम लिरिक्स बनते हैं, सेम ही लिरिक्स है। अभी श्रेया घोषाल का गाना लेंगे अगर, बेखबर, तो उसका लिरिक्स है, ओ बेखबर, ओ बेसबर, बेचैनिया है यार। क्या है ये भाई? 8 माइल है ये, रैप गॉड है। अब मैं तुम्हें बताता मैं हूँ, एक मैं तुम्हें वीडियो देख बताता रहा हूँ, था। सबसे अच्छा हाँ एग्जाम्पल ना, ये जवानी है दीवानी का, पन में पुदीना देगा, नाक का नगीना देगा, चिकनी अरे चमेली देगी, क्या ये तो मतलब है कुछ ये? नहीं। अरे क्या एक है एक ये? वीडियो देखा मैं, एक वीडियो देखा था मैं, वो लिरिक्स डाइसेक्ट कर, वो गाना है ना स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, हाँ तो हाँ हाँ उसमें हाँ उसके हाँ लिरिक्स देखे, इश्क से आगे कुछ नहीं कुछ, इश्क से हाँ बेहतर कुछ नहीं कुछ। अरे मतलब लिरिसिस्ट बैठा, उसको समझ नहीं आया क्या लिखूं, उसने कहा कुछ नहीं, इश्क से आगे कुछ खत्म नहीं, है, इश्क से खत्म. बेहतर कुछ नहीं, इश्क से ऊपर कुछ नहीं, इश्क बिना कुछ नहीं। बस गाना इश्क बन बिना गया। हम कुछ नहीं. भाई, भाई फैंस हमको बता देना. हम माफी मांगते हैं, हमारा ऐसा कोई मतलब, आयरनी नहीं कर रहे थे हम. भाई हम पर तो एक चीज आयरनी। नोटिस किया क्या, सुन सुन,
बॉलीवुड में कभी गाने आते हैं ना तो सब लोग ना गाने के बारे में बात करते हैं, पर लिरिसिस्ट को कोई क्रेडिट नहीं मिलता कभी। बस लिरिसिस्ट के नाम पे अपने को कौन मालूम है? जावेद अख्तर मालूम है, गुलजार साहब मालूम है, उसके आगे किसको अपन पूछते ही नहीं है। अरे अब यार तेरा एक फेवरेट एक गाने पता का है तो लिरिसिस्ट पता कौन है? बता। मेरा नहीं मालूम? कोई भी तेरा फेवरेट गाना बता, उसका लिरिसिस्ट बता। भाई हिंदी हिमेश नहीं, रेशमिया। बॉलीवुड। नहीं वो तो हाँ, कंपल्सरी मैं हो तो गया। बता दूंगा नहीं मैं नहीं या मैं बता तो पाऊंगा बता भाई, दूंगा मैं देखो फुद्दू हूँ, मैं इस मामले भाई में फुद्दू हूँ। भाई मचाएंगे एमी में बनता है। एमी में बनता है सुप्रीमेसी आए सैयद मैं कादरी आज से मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है मीवे। भाई एमी वे बेस्ट सैयद भाई कादरी ने ना अरे वो लिरिक्स ना, क्या ममड़ा ममड़ा चप्पल का चमड़ा टांगों को तोड़ूंगा करूंगा बंगड़ा। बेस्ट लिरिक्स। ओह माय गॉड। भाई पता है मचाएंगे 2 की लिरिक्स है, ऑप्स्टिक से अलग अलग चश्मा लिया, घर पहुंचा, मॉम स्टिक से मारी मुझे। क्या है ये? भाई मेरे लिए पता है फनी क्यों क्योंकि मैंने मचाएंगे सुना ही नहीं है पार्ट 2 सेम 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 मैंने मैंने भी नहीं बंद सुना कर दिया मैंने अंदर भाई बंद कर दिया अब तो मचाएंगे सुनना मल्टीवर्स है, तुम्हें पता नहीं मचाएंगे हाँ मल्टीवर्स के बारे में? मचाएंगे 1 है, मचाएंगे 2 है, मचाएंगे 3 है, मचाएंगे विद सम फॉरेन आर्टिस्ट है, और मचाएंगे का पार्टी मिक्स है, और मेकिंग ऑफ मचाएंगे भी है। रणवीर कपूर कांटेक्ट एमी में बनता है अगर आपको शिवाय ट्रिलॉजी बनानी है तो। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र, के यस वो चाहिए अगर ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र की ट्रिलॉजी में एमी को बुलाओ। भाई कोक स्टूडियो में आ जाएगा एमी में मचाएंगे लेके। एक था वी वर टॉकिंग अबाउट लिरिसिस्ट Yes. एक लिरिसिस्ट था यार आई डोंट रिमेम्बर यार फक मैं नाम कैसे भूल गया कभी क्रेडिट नहीं मिलता ना खैर लिरिसिस्ट को। किसी और दिन सुनाऊंगा ये कहानी क्योंकि मैं नाम ही भूल गया सो इट विल नॉट बी नो अरे वही जस्टिफाइड कि तो मैं तेरा नाम पॉइंट बिना को नाम प्रूव किया हाँ, नहीं। आई नहीं गेट याद है। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। एक लिरिसिस्ट है एक्चुअली जिसने सारे वो पुराने गाने लिखे हैं, बट वो मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है अभी। के से कुछ तो भी आई अमिताभ है, नाम नहीं भट्टाचार्य याद। आई गेस। समीर समीर नहीं रे, समीर हाँ ओके पता नहीं। अमिताभ भट्टाचार्य इज अ गुड लिरिसिस्ट हम्म। ना बट वही है देखो अब बेसिकली सब बातों का जितनी हमने बात करी उसका कंक्लूजन एक ही निकला है कि अभी भी अच्छे आर्टिस्ट हैं अभी भी अच्छे सिंगर्स हैं अभी भी It's अच्छे just the म्यूजिशियंस हैं people that need to लेकिन listen to them. Yes. हाँ हाँ लेकिन बस अब वो माहौल नहीं है ना वो एरा नहीं है जिसपे वो अपने पीक पे होते हैं Yes. वो सबका पीक जा चुका है Yes. तो और भाई इवन इन अच्छा सोनू आर्टिस्ट निगम वही है जो अभी तक मेन स्ट्रीम नहीं हुआ, क्योंकि वो Yes. स्ट्रगल कर रहा है, इवन तो बहुत मेहनत कर रहा है वो। मेन स्ट्रीम इवन हो इफ जाएगा सोनू तो निगम एमवीपी हो जाएगा वो। even if someone is singing like Sonu Nigam is singing these days but he is not singing to his best capacity क्योंकि अभी वो हम्म, पीक नहीं रहा है ना हम्म। तो वो टाइम जा चुका है इसलिए वो समय अब वापस नहीं आ सकता इसलिए हम जैसे नॉस्टैल्जिया पेजेस को जरूर फॉलो करें अगर आपको ऐसा समय यहाँ पे मैं फिर से चाहिए ऐड तो गाने शाने एंड स्टीव के पेज का भी मैं ऐड टीनेक्स मेंशन करूंगा। नेक्स्ट मून। अच्छा सुन 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 मूड सुन। हाँ अरे सुन सुन, सब लोग ना अपना अपना एक प्लेलिस्ट बना के देना, अपन ना डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, ठीक है सबका। ओके आई भाई हैव माय मेरे ओन पूरे लिस्ट गाने आई हैव वीकेंड के हाँ, होंगे, मेरे पूरे गाने वीकेंड के होंगे। मैं डाल दिए अपने हिसाब से। मैं पर तो एक चीज जंकी हूँ नोट, भाई 2000 म्यूजिक जंकी आजकल भाई इंस्टाग्राम पे रील्स पे मैं सही बता रहा हूँ, मेरा म्यूजिक टेस्ट इज वेरी वन डिमेंशनल। It's very one dimensional. It's like I listen to only those 10 to 12 songs each day, every day. मेरे को मजा आ जाता लूप है। I'm good. लूप सब के सब ऊपर। सेम मैं भाई नहीं सुनता मुझे भाई। प्लेलिस्ट मेरी मोनोटोनस पसंद है, मतलब पहला गाना और आखिरी गाना सेम साउंड करना चाहिए, ऐसे मैं ऐसा पता लगना है चाहिए वही वही गाना चल रहा है। I was 14 if I'm not mistaken when I listened to Beauty Behind the Madness. This was the album which made Weeknd the big thing. बहुत अवार्ड्स मिले थे हाँ उसमें। हाँ उसमें एक गाना था कि इन द नाइट गाना था, उसमें काफी सही गाना था भाई। मैं तो 13-14 साल का, मेरे को घंटा को नहीं समझा, लेकिन जब आज मैं उसको सुनता हूँ, ओ माय गॉड, ये वीकेंड, दिस गाय कैन लिटरली गेट अवे विद थिंग्स। वो ऐसी चीजें बोलेगा एंड यू विल बी लाइक क्या बोल गया ये। उसके गाने के एक लिरिक्स है, मतलब ऑर्डिनरी लाइफ करके गाना है, एंड देन ही इज लाइक आई एम जेम्स डीन, आई एम अ die when I'm young. She just giving head, she don't know what I've done. Like I'm James Dean, I'm a die when I'm young. मैं गाने मस्त ऐसे सुन रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है, वाइब इतनी अच्छी है, लेकिन जब मैं फोकस करके सुनता मैं ये हो क्या गया, ये हो क्या गया मेरे साथ। जेम्स डीन डाइड इन 1955 पता है और Yes. वो आज भी लोग उसको लेजेंड कंसिडर करते हैं उसने हार्डली 2-3 मूवीज करी होंगी एक उसकी सबसे फेमस थी रिबेल विदाउट अ कॉज Yes. यही नाम है हम्म। अगर गलत नहीं हूँ मैं Yes. तो वो 2-3 पिक्चरों से भी वो इमोर्टलाइज हो चुका है हाँ क्यों भाई। क्योंकि पॉप कल्चर में क्योंकि लोग टीनेजर्स उसको बहुत फैंटेसाइज करते हैं ना अगर कोई चीज को फेमस अब यंग, करना है अब एक्सटेंशन को देख लो भाई। टीनेजर्स को टारगेट करना पड़ेगा ना यू हैव टू टारगेट द टीन्स Yes. दैट इज व्हाई Yes.
you see Michael भाई Jackson. और एक चीज आई प्रीतम वुड कितना लाइक टू popular ऐड हुआ। Yes. हाँ भाई बोल बोल स्टीव। कि जो नॉस्टैल्जिया वाली चीज है कि पहले जो बड़े म्यूजिक लेबल्स या कॉर्पोरेट्स थे वो इतने ओवर पावरिंग नहीं होते थे। पहले आर्टिस्ट के नाम से गाने चल जाते थे। अभी ऐसा हाँ नहीं रहा। अभी ऐसा है कि टी सीरीज पे अगर आर्टिस्ट आएगा तो उसको अच्छे पैसे मिलेंगे क्योंकि उसके सब्सक्राइबर्स 100 मिलियन क्रॉस कर हाँ चुके हैं। तो जैसे अल्ताफ राजा ने भी अभी गाना किया था तुम तो ठहरे परदेसी, तो वो उसमें तो वो बहुत पहले फील ही किया नहीं था। था। नहीं नहीं अच्छा अभी वाला। अभी उन्होंने फिर से बनाया वही ओह आई हैव गाना। टू चेक इट आउट। हाँ, Okay. और पता है वो गाने पे अल्ताफ राजा के ऊपर कौन काम कर रहा है? टोनी कक्कर। भाई टोनी अभी कक्कर वही हो गया, अल्ताफ पता है राजा क्या को तुमको? सिखा रहा है। टोनी देखो कक्कर Can't अल्ताफ die राजा को once सिखा more. रहा है। भाई अभी वही हो गया है। आयरनी डाइड हियर। Yes. इंटरनेट पे पुराने गाने वापस वायरल होंगे और वहां पे एक बंदा आएगा, टनिस, क्या नाम है, टनिस बागची, हाँ Tanishq वो Bagchi. आएगा, बागची। उसको 2.0 बताएगा और इतना गंदा करेगा उसका, इतना गंदा करेगा उसका कि But भाई पहला गाना। 2.0 ना, 2.0 से I remember मेरे ढोल ना सुन from Arjit Singh. Oh my god. हाँ हाँ भाई, दैट सॉन्ग पता है मैं उसको रोज भाई सुनता बिना हूँ, चेंज करे रोज Same, मतलब रीमेक करा तो same. अच्छा लगता है। हर सुबह बहुत सुनता बढ़िया, हूँ। बहुत बढ़िया. I'm और like, प्रीतम, पीपल डोंट कंसिडर हिम एज अ लेजेंड बट प्रीतम इज अ लिविंग लेजेंड। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग अभी तुम्हारे पास अभी भी है ना उनकी कदर करो। अभी जैसे के को उतना नहीं पॉपुलर किया लोगों ने व्हेन ही वाज अलाइव। स्टार्ट अप्रिशिएटिंग प्रीतम। दैट गाय इज अ लेजेंड। हाँ ही इज बीइंग मेकिंग गुड म्यूजिक कंसिस्टेंटली ओवर द पास्ट 20 years एंड हर एक आइकॉनिक जो बॉलीवुड की एंथम रही है ना दैट हैज बीन गिवन बाय के यू यस टेक 2003 से ले लो, 4 से ले लो, अभी तक ही हैज बीन अराउंड इवन and विद he हिमेश has been रेशमिया, इवन relevant. विद के। हाँ ही हैज बीन रेलेवेंट। ये तब से है जब सोनू निगम बच्चा था, नया नया मतलब जब सोनू निगम स्टार्ट कर रहा था 2000s के टाइम पे, तब भी प्रीतम बनाता था सोनू के लिए गाने और आज भी ये गाने बना रहा है अरिजीत के लिए, है ना। तो प्रीतम हैज बीन अराउंड भाई एंड एक चीज है, प्रीतम के ऊपर ना बहुत सारे ऐसी चीज बोलते हैं कि वो कॉपी करता है, मतलब पुराने जो वेस्टर्न गाने हैं ना उसका ट्यून लेके चेंज हाँ करके, हाँ पर फिर भी कितना अच्छा बना रहा है। देखो यार, कितना कॉपी अच्छा देखो करो. बना There's रहा no है। problem in अगर copying. वो There's literally there no is no problem in problem in copying. copying and actually it's not the composer's fault कि अगर वो गाना कॉपी कर रहा है। समटाइम्स प्रोड्यूसर कहता है कि यार मुझे ये गाना चाहिए अपनी मूवी में क्योंकि मैंने हाँ, ये गाना कहीं सुना था और हाँ. मुझे यही ट्यून चाहिए, यही सेम धुन चाहिए अपने गाने मूवी में गाने में। तो Yes, अब ऑब्वियसली उसके तो हाथ बंद हैं, उसको तो करना पड़ेगा। yes, तो exactly. उसकी भी गलती नहीं। Who हाँ makes महेश my भट्ट heart जैसे, beat like thunder? हाँ दैट एग्जैक्टली महेश भट्ट अगर मूवी प्रोड्यूसर नहीं होता, अगर महेश भट्ट, तो आज मेरे जैसा मीम पेज एडमिन होता क्योंकि उसको भी गाने सुनना बहुत पसंद है। उसकी Same. मूवीज के गाने इतने प्यारे होते हैं, इतने प्यारे होते हैं और भाई जनरली मूवीज गाने टट्टी कहीं हो, और से ठीक है, उठाए हुए मूवीज होते हैं। टट्टी, गाने बढ़िया होते हैं. हाँ वो गाने कहीं और से उठाए होते हैं। ये भाई सुशांत मुझे को भी एक दिखाया इंसान लगता है जिसको है। और अटेंशन देना चाहिए, वो है भाई लॉर्ड हिमेश। लॉर्ड हाँ भाई हिमेश लॉर्ड हिमेश नीड्स तो मोर भाई अटेंशन दे यार। भाई नहीं सबसे या लेजेंड, ही नाम नहीं हैज लेंगे, गॉट हिज, उसका हिमेश नाम हैज भी ले गॉट लेंगे हिज। तो उसके बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं कर सकते। ए आर रहमान, उसके बारे में क्या ही डिस्कस क्या करेंगे हम। डिस्कस करोगे भाई? हाँ खत्म भाई है देखो वी आर बात. सबसे नॉट सब गोना टॉक परफेक्ट है अबाउट, भाई तेरा। क्या वी आर डिस्कस नॉट करें हम? इवन हमको गोना कुछ टॉक अबाउट हम बहुत छोटे हैं. ए आर अपन बहुत रहमान। फुद्दू हैं हाँ भाई. वो हम ऑस्कर लेके हम आए। हमारी अभी इतनी औकात ही नहीं है ना कि हम उसके म्यूजिक हाँ के बारे में जिक्र तक वही, करेंगे क्या यहाँ पे। करोगे तुम? हम्म, What भाई credibility do वही है we ना, have? हाँ जैसे बाय मैं व्हाट भी कुछ अथॉरिटी। आर्टिस्ट अप्रिसिएशन पोस्ट जैसे हम बनाते हैं, तो उसमें भी मैंने सोचा कि मैं जगजीत सिंह का बनाऊंगा। पर अब मैं हम्म जगजीत सिंह साहब के बारे में क्या ही बोलूं, मतलब Yes, हम्म हाउ डू exactly. आई इवन डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। That's very true. देखो जगजीत सिंह तो अच्छे हैं ही। आई इक्वली लाइक मेहदी पंकज, हसन मेहंदी. and गुलाम अली खान साहब और पंकज उदास, रणवीर मेहंदी। नूर जहां ले लो, है ना, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब नमांग, मतलब दे हैव क्रिएटेड वंडर्स, नुसरत टाइमलेस साहब। मेलोडी, इमॉर्टल सॉन्ग्स, है ना, इमॉर्टल सॉन्ग्स। अब वो अब वो गया, सब खत्म, टाटा, अब नहीं रहा कुछ। भाई Okay, पर वो मुझे boys. वैसा तो नहीं एक्चुअली ना, लगता थोड़ा है ना कि हिंदी में देखने को मिलता है। Okay, हिंदी में अब boys. थोड़े इंस्पिरेशन देखने मिलते हैं। बट यार इंडी इज द फ्यूचर ना, एज स्टीव सेड, हाँ इंडी में अच्छा भाई, अच्छा हाँ हाँ आर्टिस्ट है। Yes. भाई है। पहले पहले टीवी पे ना फाल्गुनी पाठक के पूरे एल्बम चलते थे। हाँ चूड़ी ये जो फाल्गुनी खने की पाठक, फाल्गुनी पाठक आज के पूरे मूवीज पता है, होते हाथों में. डांसिंग डांसिंग टू फाल्गुनी पाठक सॉन्ग्स लड़कियों का, दिस यूज्ड टू बी द हॉट गर्ल शिट। जो अपने हाँ हॉस्टल में ना, दे यूज्ड टू, आई शुड नॉट से दिस बट लाइक सावरिया, wear a towel
and then dance like Morni बन के छम छम नाचो. That was the hot girl shit in 2004. Yes, it was. ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया. Real. It was. फाल्गुनी Okay, पाठक. boys. भगवान एक बार दिला दो. पर्टिकुलर सॉन्ग है. Okay. I'm really sorry to interrupt. सुशांत और मैं बहुत गाना गाते हैं वो चीज. सुशांत और उसको बिल्कुल 0 हिट. सबको गाना अच्छा लगेगा. आसमान को छूकर देखा, बाल हनुमान का. हाँ. हनुमान है, बाल हनुमान का. भाई मैं तो हाँ, लगता भी बेस्ट हनुमान हूँ. गाना है. मैं तो लगता भी हनुमान जी जैसा हूँ. भाई मैं तो भाई- सुसाइड करके जा रहा, वो गाना बज जाए मैं वापस आके नाच के जाऊंगा. ऐसा Same. गाना है. भाई Same. one talent that I miss is आतिफ असलम. ईश. हाँ. हाँ, आतिफ भाई. असलम यार. पता है वो ना things got worse after the 2016 पुलवामा attack, I guess. हाँ. 2016 में हुए थे ना वो. After हाँ. they banned Pakistani artists. वरना we lost राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम राहत because of फतेह that. अली खान. है ना, as unfortunate as the event was, but we lost some great Pakistani singers as a result of it. भाई अब देख Like लो, आतिफ असलम. मैंने तुझे देखा. हाँ, अली जफर जफर. भाई, his voice, अली जफर. he has a daddy voice. वो कहते हैं ना corpse. वही यार. अरे पता है उसका ना वो Baritone. गाना था. आई डोंट रिमेम्बर. अदिति राव हैदरी के साथ में मूवी थी वो, लंदन वो पेरिस देखने न्यूयॉर्क. में कैसी, हाँ वो देखने कैसी में थी. कैसी वो है. देखने में हाँ, कैसी हाँ. थी शादी लगती. बहुत I सही. love him. भाई मैं Immense देखो शाउट आउट talent. टू अली जफर. मैं क्या ही शाउट आउट दूंगा, मैं खुद दूं. सॉरी. मुझे हिंदी से याद आया कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अपन इंडिया आर्टिस्ट बुला रहे हैं, वो है पुनीत सिंह. लोगों ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे मेरे उस पे बहुत गाने देखे रहेंगे. पता बहुत है अच्छा है. तुम लोग मेरा बेस्ट है बाइसेप वो. मेरा बाइसेप इतना है. पुनीत का म्यूजिक टैलेंट इतना है. ओके. भाई क्या- जब मैं Okay. आतिफ असलम के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरे को बस एक चीज बहुत ही उनके बारे में टाइमलेस लगती है कि उनका जो आई मीन 4-5 साल पहले का गाना है वो पहली दफा, वो सुन के ऐसा लगता है कि वो 2010s का ही लगता है मुझे. होना था प्यार. वो भी सुना गाना. है सुना नहीं, होना था प्यार तो है, हाँ, वो तो है. पहली दफा सुना है. सुना है. वो ऐसा लगता है 2010s का ही गाना है भाई. सो फ्रेश. वाओ. फ्रेश एज अ मिंट. ओके बॉयज एंड गर्ल्स. हाँ. गर्ल्स यहाँ तो लड़कियां हैं I ही think नहीं. this is- हमारी लाइफ में भी ऐसी ही है. खैर. This was fun. This Ah. was fun. Yes. So now that we are at the end, कुछ शब्द, 2 शब्द आप लोग ऐड करना चाहेंगे अपने अपने तरफ से. ये देखो, ये काफी मतलब स्कूलिश वाली फीलिंग आ रही होगी, बट आई होप दैट यू गाइस हैड अ ग्रेट टाइम एंड आई अपनी होप आंसर शीट बांध लो. yes and I hope आंसर शीट बांध लो. 2 Yes. मिनट बचे हैं. yes and I hope that our listeners had a great time as well. I'm hoping कि ऐसे मजे हम सबको दें. Yes. ये मजा 2 शब्द. जाओगे. मैं सबको देना चाहता हूँ. Now moving on. अब अपने अपने ओपिनियंस दे दो. मेरा तो हो गया. मेरा ओपिनियन बस इतना सही है कि अगर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मासेस. अगर हम अच्छा म्यूजिक सुनेंगे ना, अगर हम रिजेक्ट कर देंगे खराब म्यूजिक, तो वो खराब म्यूजिक कभी आएगा ही नहीं मार्केट में, क्योंकि इट इज सप्लाई एंड डिमांड. तो अच्छा सुनोगे, अच्छा टेस्ट डेवलप करोगे तो अच्छा ही म्यूजिक आएगा. अब इंस्टाग्राम रील्स आ गई हैं, वो तो हट सकती नहीं है. मेक यूटिलिटी, उसका यूटिलिटेरियन व्यू निकालो, उसको थोड़ा अच्छा यूज करो, ताकि नो फॉर द greatest happiness of the greatest numbers, as they say. That is Exactly. it. Now Steve, what would you like to add? भाई मैं यही बोलूंगा, अभी जो हमारे पास है उसको उनको प्रिजर्व करो, उनको अप्रिशिएट करो और उन्हें सपोर्ट करो. भाई लोकल ट्रेन है हमारे पास अभी भी. बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, उनको सुनो. भाई ऋत्विज को सपोर्ट करो फॉर रियल. भाई ऋत्विज मार्वल में उसका गाना is आया. gonna- भाई देखा, मार्वल में उसका गाना है. मिस मार्वल जो आया ना सीरीज, उसमें उसका गाना है. हाँ ऋत्विज. What? हाँ. भाई ऋत्विज हाँ. ने उसके इंस्टाग्राम पे बताया कि वो जो बारात में फीमेल वॉइस है वो उसी की है. व्हाट द फक. वो सुना सफर पर प्रेम नगर है, वो उसकी आवाज है. भाई Wow. रिमार्केबल. Wow. तो बस वही है. और अगस्त्य शाह को फॉलो मत करो. नहीं. No offense. No offense. No No offense, offense. man. भाई देखो, अच्छा ऐसा क्या? मुझे नहीं नहीं देखो, मालूम था. हमारा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता. हर्ष माली साउथ बॉम्बे में रहता है, उसको देख लेना. मैं तो नागपुर की पब्लिक को भाई हाथ लगा के नागपुर की पब्लिक बोले तो तकलीफ. 3,000 करोड़ रुपए लूट लिए.
ओफो, लेकिन इन सब चीजों का इससे क्या संबंध? सारा देश नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है क्या बोलती पब्लिक, बोले तो तकलीफ, अमूल माचो पहन के नाचो। मैं तो बहुत ऊपर रहता हूँ। स्टाइलों को मुझे पॉडकास्ट पे लेना है। टू बी ऑनेस्ट, What would you like to say? Like now that we are signing off. लोग जा रहे हैं, मैं यहीं पे हूँ, मेरा पॉडकास्ट है, मैं रहने वाला हूँ यहाँ पे, मेरा कुछ नहीं करना। Obviously. पॉडकास्ट में सुनने वाले हो। अरे मैं तो यहीं. I think it was a success. I had fun. We had fun. We all had fun. Yes. I think the viewers will have fun and learn something. जितना बहुत थोड़ा बहुत हमको आता है, हमसे कौन ही सीखेगा? वही. हमारी अथॉरिटी क्या है? Like, हम comment, share, अंडर ग्रेजुएट हैं. subscribe। अंडर ग्रेजुएट से कौन क्या ही सीखेगा? Exactly. ठीक है. 21 साल के 20 साल के लौंडे हम लोग, हमसे क्या ही सीखोगे तो. खैर, हम तो मजे कर रहे हैं. हम तो मजे कर रहे हैं, तुम भी मजे करो, हमारे भाई- साथ तुम भी सुनो. भाई ठीक है, लेकिन वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट अ गाय, जो भी बंदा ऐसा 19-20 साल का कुछ तो करते रहता है ना, आई लाइक इट कि वो कुछ ब्रांड अपना खुद का बना रहा है, बिकॉज हाँ. यू नो तुम्हारा कोई भी ऑनलाइन प्रेजेंस एक्चुअली काम में आता है फॉर रियल. मेरे आता है. जितने भी फॉलोअर्स होंगे, बट या फ्रॉम डे 1 काम में आता है ये चीज. और भाई आई गॉट अ फकिंग कॉर्पोरेट जॉब इसकी वजह से. पता है, कल मेरी ज्वाइनिंग है, मैं एक अमेरिकन कंपनी में, वाह. कल मेरी कॉर्पोरेट जॉब शुरू होने वाली है. बधाई हो यार. सोचो, मैं क्या fucking करूं, मैं भाई मर जाऊं. मैंने- वाओ. बस अब भाई मैं क्या नॉर्मी उधर हो रहा हूं. उन्होंने- और इंटरव्यू में भी उन्होंने मुझसे कोई कॉर्पोरेट सवाल नहीं पूछा. उन्होंने बस दे वर वेरी फैसिनेटेड अबाउट व्हाट आई डू. तो उन्होंने पूछा एक्सप्लेन मी, और मैंने बस बहुत प्रोफेशनल तरीके से बताया व्हाट आई डू. उनको समझा कुछ भी नहीं, बट उनको ये बस इतना बताया कि मोहम्मद रफी को अप्रिशिएट किया सर. हाँ, you never know ना कब कहाँ काम आ जाए. Yes. बहुत काम आता है. I feel Actually. secure in देहरादून. I feel secure in देहरादून कि भाई कभी लफड़ा हो गया तो I have 37,000 people, इनमें से क्या पता 500 तो होंगे देहरादून में रहने वाले, है ना? और उनमें से भी 40 आ गए, उसमें से भी 40 आ जाए तो बहुत है. भाई भाई भाई, हाँ. गाने साने को जिसने पीटा उसकी ऐसी तैसी मैं नागपुर से आके मारूंगा, ठीक है. चलो ठीक है गाइस. Okay boys, it was fun. I had a great time. I hope you as well. Same here. Jai Shri Ram. Signing Bye. off.